all of you seen the last session recording? Was not there, was not able to attend the last session. So it was mostly on the psychoanalytical theory. The Sigmund Freud, the psychoanalyst, the renowned name in the field of psychiatry, Sigmund Freud, right? So how the conflict develop in the person and how it goes into the disorder. What are the primitive age problem? Primitive age matlab developmental age in the children, like a 2 to 5 years, where if the conflict or if the instinct, that means the desire, some instinct or the some desire, strong urge or drive is not fulfilled, if it gets frustrated, how it turns to be a conflict, and it reflects over a period of time, it reflects as a disease condition. मतलब जो इंस्टिंक्ट होते हैं चाइल्डहुड में, जो अर्ज होते हैं, जो इच्छाएं होती है, जिसको बाय एनी हाउ, बाय पनिशमेंट, बाय रिस्ट्रिक्शन, बाय पैरेंटल डोमिनेशन, वो पूरा नहीं होता है, और वो चीज वहां अर्ज या इंस्टिंक्ट या स्ट्रॉन्ग डिजायर फुलफिल्ड नहीं होता है, तो दैट विल लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट फॉर्मेशन, और दैट में फर्दर cause the disease, responsible for the disease, right? So this is the conflict idea, or this is called as the psychoanalytical understanding of the any disease, where the doctors or psychoanalysts trying to resolve the conflict which bound or bind in the childhood developmental period, that is the in the early age of the childhood, right? So but what we usually see in homeopathic practice, what we usually see in homeopathic practice, we are trying to see the cause effect relationship. If there is a, if there is a effect is there, whatever it may be, in the form of mental disease or even in the physical disease like diabetes, hypertension, ulceration, piles, peptic ulcer, right, autoimmune disease, we trying to see what exactly happened, or there was a psychological disturbances or conflict that occur which leads to this disease condition. So we always go to retrospectively, right? Since the disease gets started, मतलब जब से वो प्रॉब्लम शुरू हुआ, हम उसको evaluate करने की कोशिश करते हैं. But in the psychoanalytical theory, the conflict we try to evaluate long distance, long back, मतलब mostly in the childhood, right? So that could be in the form of frustration of the urge or instinct or unfulfilled desire, right? See, instinct doesn't mean even in the instinct means the desire, a strong desire, right? Again, we discuss about the realistic anxiety and neurotic anxiety. This is very important to demarcate the realistic anxiety, where we usually see, हम अपने दैनिक या रोज के डेली रूटीन में देखते हैं कि हम एंशियस होते हैं टू सम एक्सटेंट फॉर सम सिचुएशन. एंजाइटी होती है बिकॉज एंजाइटी इज द बेसिक इमोशन जो हर पर्सन में या हर लिविंग बीइंग में होता है और रहना चाहिए, because this is the primary defense mechanism, and if this defense mechanism is not acting, then it will cause the, it is the harmful for human psychology or human being. So but the anxiety must be a sound anxiety, or it must be a for a short time. It doesn't hamper your performance or hamper or may not cause the physical distress, right? But when it become the, when it becomes the huge anxiety, or it remains for a long time, or when it precipitates your physical distress in the form of palpitation, in the form of perspiration, in the form of ghabrat, in the form of agitation like that, sleeplessness, appetite reduce, some somatic symptoms, then it becomes the neurotic anxiety. Then
it may forms the disease condition. The anxiety disorder, there are the different form of the anxiety disorder, then depends on that. It may produce the OCD, that anxiety, that fear. And there is a little difference between the anxiety and fear. Even I explained in the last session. Considering that, because all that informations, all that knowledge, you must apply on the consecutive sessions, right? Even what the cases we are going to discuss, that you have to apply it, that in these cases, right? Even we have seen the classification of anxiety disorder, generalized anxiety disorder, phobia, social phobia, like that. So there are the different type of the anxiety disorder, right? So in the first, we have seen the convergent disorder, then generalized anxiety disorder. I have sent you the case of OCD, obsessive compulsive disorder. Next time might probably we can see the OCD, obsessive compulsive disorder, how the psychodynamic acts and how the disease originate. There was a recently I have taken a case last week where the lady, see the people, most of the people doesn't realize or doesn't know that he or she is suffering from the psychiatric illness, or he is in the borderline psychiatric illness. मतलब दैट लेडी, मतलब वो जो लेडी हु इज मैरिड, उसका ऑब्सेशन इस लेवल पे है कि अगर कोई बेड पे अगर उसने बेड पे अगर कोई बिना नहाए बिना हाथ मुंह धोए अगर कोई बैठता है आता है, तो तुरंत वो अपनी बेडशीट चेंज कर देती. इवन द हर डॉटर हु इज 6 years और 5 years एज, अगर वो भी आती है बिना नहाए धोए, अगर बाहर से आती है और चद्दर पे बैठ जाती है, तो चद्दर तुरंत चेंज कर देती है. ये शी कांट टॉलरेट दैट थिंग. इवन बाहर कभी भी कहीं पे भी बाहर गई 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए घर से बाहर निकली, तो घर आने के बाद जो ड्रेस पहन के वो गई थी वो ड्रेस चेंज करना कंपलसरी, मतलब करते ही है दैट पेशेंट. सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, इवन वॉट एवर द, कहीं पे भी उसका टच कहीं लगा जहाँ गंदगी है या नहीं है, तो कंपलसरी हैंड वॉश करना ही है. हैंड वॉश करना ही है. अगर लड़की भी बाहर जाती है और खेलती है, तो उसको उसके कपड़े बार बार चेंज करना, मतलब 5 से 4-5 बार अपने कपड़े चेंज करना दिन में, लड़की के भी करना है ना. तो हस्बैंड का भी कुछ अगर इधर उधर ऐसे गंदगी है या कुछ है तो टॉलरेट नहीं करना. ऑल दीज आर द सिम्टम्स दैट comes to the point कि this is the obsession, obsessive disorder, obsessive behavior, and this is not normal, right? Because this stage, this OCD may turns later on, if it is not treated, may goes into the schizophrenia, may goes into the mania. That's why the awareness and consciousness of this condition is very important. We have to be oriented that this is not a normal. You are going towards the abnormal, or this is the psychiatric condition which needs to be evaluated, which needs to be treated or managed. बराबर है कि नहीं? सो इसके लिए हमको ये समझना जरूरी होता है कि ये एक्चुअली नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी, जैसे कि ये न्यूरोटिक रियलिस्टिक एंजाइटी है और न्यूरोटिक एंजाइटी है, तो रियलिस्टिक से न्यूरोटिक में एंजाइटी में कैसे पेशेंट एंटर करता है, राइट? बिकॉज एंशियस इंडिविजुअल्स predisposed to give exaggerated and inappropriate response. If you see the anxious personality or anxious person, they always give exaggerated and inappropriate response to a slight provocation. कुछ भी प्रोवोक हुआ है, कुछ भी थोड़ा स्ट्रेस आया है, तो उनका जो बिहेवियर होता है, उनका जो रिएक्शन होता है, वो बहुत ज्यादा एक्सैगरेटेड रहेगा. In the form of anxiety, in the form of fear, in the form of apprehension, in the form of anticipation, right? So considering all this knowledge up till now we gain, we acquired, we have to implement this in the cases so that we can able to identify the disease diagnosis. Then we have to identify the myism, then person in a disease condition,
person as a whole. बराबर है कि नहीं? So this we have as a homeopath, we have the extra work. मतलब हमको सिर्फ disease diagnosis is not important for us. How is the person in that disease condition is again very important for us, and patient as a person. These three important thing we have to evaluate from each and every case and each and every patient, right? तो हम केस के तरफ मूव करते हैं, देन सी द साइकोडायनामिक ऑफ द रिस्पेक्टिव जो भी क्लिनिकल कंडीशन है उसका हम फिर साइकोडायनामिक देखेंगे, एंड हाउ द रूब्रिक चूज इन व्हाट सेंस the miasm. You must be alert so that you can answer the question, you can give the quick response so that we can be easily go ahead. So this is the 40-year male patient who is my childhood friend, right? Sometimes it is very difficult to treat the any matlab difficult to treat patient who is close to us, for example family member, relatives, राइट नहीं कि क्योंकि वो जब आते हैं तो इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नॉट इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन. हम जब उनको थोड़ा सा डीपली जाते हैं, लाइफ स्पेस में जाते हैं, चाइल्डहुड में जाते हैं, कैसे हुआ, क्या स्ट्रेस है, क्या एंजाइटी है, क्या डर है, सो वही यूजुअली डोंट गेट द, in some cases we don't get the desired information. In such a case, the observational symptoms is more important. बराबर है. समटाइम्स आई हैव सीन द रिलेटिव जब आते हैं तो वो जो डेप्थ में उनको सिम्टम्स रहते हैं, दे ट्राई टू निग्लेक्ट दैट, जस्ट सेइंग द सुपरफिशियली. तो समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल such a cases, right? So but if we go principally considering the organelle of medicine, if we try to understand them, the intensity of the disease, and try to understand them कि ये ठीक होना कितना important है, अगर पेशेंट का ओरिएंटेशन एंड मतलब सेल्फ जो ओरिएंटेशन है कि सेल्फ डिसीज के प्रति जो जागरूकता है कि वाह ये बीमारी है और ये तकलीफ ज्यादा है, तो ये जागरूकता होना भी बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू नरेट द कंडीशंस और इन ऑर्डर टू गिव द प्रॉपर केस, राइट? सो इलनेस के प्रति जागरूकता. So he came to my OPD alone, frustrated and despair due to illness and waiting since 2 days for getting my consultation. इतना कि बस लास्ट में बोला कि अभी सिर्फ मुझे ठीक करके दो, राइट? मुझे एनी हाउ ठीक होना है क्योंकि मैं अभी परेशान हो गया, क्योंकि such a kind of anxiety disorder, hypochondriacal patient, somatoform disease condition patient always try to move from one doctor to another, try to see the immediate relief. They become impatient. They want the immediate relief because there is a threat, there is a fright or flight. They run from here to there in order to get relief because they are in a fearful condition. They are in a confused condition. बरोबर है? They are in a confused state. That's why it is very important to explain, orient all such a patient कि exactly क्या है और हमको कैसे इसको ट्रीट करना है और पेशेंस रखना जरूरी है. But if your remedy is wrong in the first prescription and they don't get the desired result or any improvement in the first week, then such a patient will definitely leave your consultation or leave the your clinic or doctor. They will not wait. That's the problem. The anxiety disorder वाले है ना, somatoform disease, OCD वाले है ना, पैनिक वाले, तो प्रॉपर जजमेंट, प्रॉपर इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, प्रॉम्प्ट सिलेक्शन ऑफ रेमेडी ये बहुत ही जरूरी है, राइट? एट फर्स्ट कंसल्टेशन, and always try to take a follow within a short period of time, in one day, in 2 day, in 3 day, like that.
He completed his B in 2008, but right, he completed B in 2008 and shown to me in 2023 December, preparing for civil exam after that, temporarily doing job as a teacher and administrator. Unmarried, unmarried person. I have taken the case in at Pulgaon Clinic, 25 December 2023. Try to see the date so that we can see when अपन follow up देखते हैं तो देखना है कि कितने दिन बाद follow up है और कौन सी मेडिसिन में कितने जल्दी इफेक्ट हुआ है. द रेमेडी का एक्शन और इफेक्ट हमको इवेल्युएट करते आना चाहिए, क्योंकि एज आवर प्रैक्टिस बूस्ट, एज वी सी द नंबर ऑफ केसेस, हमको ये इवेल्युएट करते आना चाहिए कि ये मेडिसिन देने के बाद कभी कभी होता है कि मैं भी एक्सपीरियंस आया है कि ये मेडिसिन लीजिए 2 घंटे में 3 घंटे में आपको इतना इतना आराम हो जाएगा. दैट इज द प्रेडिक्शन, दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रेडिक्टिव होम्योपैथी विच इज द मैथमेटिकल. मैथमेटिकल इन द सेंस कि आप मैथमेटिकली उसको एनालाइज कर रहे हो कि अगर ये हम डिसीज को दिए है या सिफिलिटिक है तो इसके बाद जो सिम्टम्स मेडिसिन देने के बाद साइकोटिक सिम्टम आएंगे, सोरिक सिम्टम आएंगे, या सिफिलिटिक जो पार्ट है वो पहले चले जाएगा, वो पहले ठीक होगा, और साइकोटिक सिफिलिट सोरिक पार्ट है वो फिर लेटर ऑन ठीक होगा. अगर ये उल्टा होता है मैथमेटिकली, अगर हम देखेंगे कि सोरिक जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जो सोरिक कंडीशन है, वो अगर पहले ठीक हो रहा है और जो कंफ्यूजनल स्टेट है, पैनिक या सिफिलिटिक स्टेट है, वो इट बिकम्स रिमेन एज इट इज. बट सोरिक जो इन्फ्लेमेटरी या और सिम्टम्स है वो रिमूव हो रहे हैं, देन योर रेमेडी इज रॉन्ग, द डायरेक्शन ऑफ क्योर इज रॉन्ग. That's why when you prescribe the remedy, follow-up analysis is very, very important in order to understand whether your remedy is right or wrong, whether your direction is patient direction of cure is right or wrong. Sometimes एक तो हम मेडिसिन को रिपीट करते करते रहते हैं, नहीं तो मेडिसिन चेंज करते रहते हैं, या फिर हमको समझा नहीं कि ये, हमको लगता है कि ये सोरिक सिम्टम मतलब ये पेशेंट बोल रहा है कि हाँ डॉक्टर साहब ये आराम है, पेट जो दर्द हो रहा था वो आराम, पर कंफ्यूजनल स्टेट, और ये जो मेंटल सिम्टम जो सिफिलिटिक सिम्टम्स थे वो वैसे ही है, स्लीपलेसनेस वैसे ही है, एंजाइटी एंग्विश पैनिक वैसे ही है. Then it is time to reconsider the totality, it is time to reconsider the remedy, right? So always mathematically, if you see, if the patient having the psychotic, psychosyphilitic or syphilitic symptoms, always mathematically higher miasm must be go first and then goes reverse of the miasm. That is called reversal of miasm. And if you follow the predictive homeopathy, if you understand the predictive homeopathy properly, you can easily see the reversal of disease, reversal of pathology, and reversal of miasm. Right? The reversal of miasm from syphilis to psychosis, psychosis to soric, or from syphilis to soric. Right? We go through the video so that you can understand how the patients behaving, talking to us, how they showing their symptoms. आणि मग ते मेडिसिन चालू असते. Try to see, is it the patient audio is audible, voice is audible to everyone? Give me some indications. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you. See the symptoms, how the disease evolve. I'm trying to give the large, it is though it is a large video है ना, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आगे आगे बढ़ा, नहीं तो फिर केस काफी ज्यादा चलेंगी. बट सी द सिम्टम्स, कलेक्शन ऑफ सिम्टम, ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिसीज, हाउ इट chronologically develop, and how the disease and mind is intermingled, है ना, और एक से के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है ना, क्या इंसिडेंट्स होते हैं, क्या घटनाएं घटती है, कौन सी घटना इंपॉर्टेंट है, कौन से घटने के बाद इमोशंस क्या आए हैं, ऑल you must note that so that we can इन्फेक्शन म्हणजे understand the मला disease. पोटात टोचल्यासारखं होतं,
कधी कधी म्युकस बाहेर पडते. अभी ये डायरेक्ट इन्फेक्शन मतलब एक 2-4 मिनट बाद मैंने शायद रिकॉर्डिंग शुरू किया होगा। अब ये पेशेंट जो इन्फेक्शन, काफी लोग ऐसी टर्म यूज करते हैं जो मेडिकल टर्म होती है कि डॉक्टर साहब इसको थ्रोट इन्फेक्शन है, डॉक्टर साहब पाइल्स है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, पेट का इन्फेक्शन है कि नहीं, पेट पेट बराबर नहीं है ना। तो ये टर्मिनोलॉजी या मेडिकल टर्मिनोलॉजी या ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसमें हम समझ न पाए, तो वी हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट कि यूज द वट एवर एक्सपीरियंस बाय यू, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, डोंट यूज द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, है ना। तो मैं मेरा ये कहना रहता है कि आप जो डायग्नोसिस है उस वो मत बताइए, जैसे कि जो डॉक्टर ने, है ना, होता है कि जो पहले के डॉक्टर है उन्होंने बताया होता है कि आपको ये तकलीफ है, आपको पाइल्स है, फिशर है, या व्हाट एवर इट मे, एक्सप्लेन द पेशेंट कि आप तकलीफ क्या है, आपके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, उसको आप बराबर से बताइए। कैसे वो लक्षण डेवलप हुए फ्रॉम फर्स्ट सिम्टम्स टू लास्ट सिम्टम्स। अगेन पेशेंट क्या करता है ना, अभी जो डिस्ट्रेसिंग है उसके तरफ ही ज्यादा ध्यान देता है। मतलब अभी भी आपके पास अगर एक्यूट वायरल के फीवर के पेशेंट आते होंगे, एक्यूट थ्रोट इन्फेक्शन के, या व्हाट एवर मेड एक्यूट फीवर में आते हैं, अभी जो सीजनल इन्फेक्शन चल रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन, तो ऑलवेज सी द हाउ द डिसीज इवॉल्व। मतलब पहले कौन सा सिम्टम आया, थ्रोट पेन आया, कोराइज आया, थ्रोट इरिटेशन, फीवर आया, उसके इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स, फोर्स ऑफ सिम्टम्स, ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस, मतलब ऑनसेट कैसा है, ड्यूरेशन कैसा है, और सिम्टम्स और डिसीज का प्रोग्रेस कैसा है, ये सब हमको स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्पीड ऑफ द डिसीज मस्ट बी मैच विद द स्पीड ऑफ द रेमेडी। ऑलवेज रिमेंबर, इन acute and chronic case, speed of the disease always we have to match with the speed of the remedy. If your disease progress very fast, very destructive way, and you selected the remedy which is very slow, speed is very slow, not that much destructive, that means the simillimum is not matching. You don't get the desirable effect or result, right? जो इंटेंसिटी में पेशेंट के सिम्टम्स बाहर आए हैं या इवॉल्व हुए हैं, है ना, तो क्रोनोलॉजिकली यू हैव टू स्टडी हाउ। तो सोरा टू कहाँ से गया, साइकोसिस गया कि डायरेक्ट सिफिलिस में गया, तो सोरा सिफिलिस हुआ, है ना। इंटेंसिटी कैसा, फोर्सफुली कितने समय में हुआ, मतलब सुबह ही द सुबह ही जैसे बुखार जैसे लगा, तुरंत हाई फीवर आया, थ्रोट पेन भी शुरू हो गया, खांसी भी शुरू होगी, सर दर्द, तो बाप रे, मतलब 2-4 घंटे में पूरा सिम्टम्स आ गया, फोर्सफुली, इंटेंसली। और अगर ये पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब 2 दिन पहले थोड़ा सा ऐसा मलेज या ऐसे थोड़ा सा बॉडी बुखार जैसे लग रहा था, बाद में फिर थोड़ा सा इरिटेशन हुआ, फिर बॉडी एक शुरू हुआ, फिर सर्दी शुरू हुई, फिर आज फिर खांसी शुरू हुई, chronologically if you see the how even then shortness of breath शुरू हुआ, मतलब नोज से शुरू हुआ, थ्रोट से शुरू हुआ, ब्रोंकस में गया, फिर लंग्स में गया, तो कैसे डिसीज इवॉल्व हो रहा है ना। स्पीड क्या है डिसीज का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी केसेस, एंड इवन स्पेशली इन द एक्यूट केसेस, एक्यूट एज वेल एज द क्रोनिक, राइट। एखादे तो दिवस इन्फेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बता हा रहा हूँ। एखादी दिवस असतं ते, किंवा एखाद्या काय म्हणू आपण, अटेम्प्टला असतं. सेकंड अटेम्प्ट मग ओके होतो. त्याच्यानंतर मग त्याच्यामुळे त्या पिरियडला माझं डोकं दुखत असतं. कधी हं? कधी जेव्हा पोट दुखते जेव्हा पोट दुखतं तेव्हा. हम्म. आणि त्याच्या व्हर्टायगोचा प्रॉब्लेम होता तेव्हापासून माझं हा जो पार्ट आहे हा दुखतो. म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, एक जे ल्युब्रिकंट असलेली मुवमेंट असते ती नसते त्यावेळेस जेव्हा दुखतं. हां स्टिफ सारखं हां स्टिफनेस आणखी तर त्यावेळेस डोकं आणखी जास्त दुखतं माझं. जेव्हा चक्कर येते तेव्हा डोकं दुखते की डोकं दुखल्यावर चक्कर येते? हे मानेकडून दुखतं तेव्हा चक्कर आल्यासारखं वाटतं मग. आणि मग तेव्हाच डोकं दुखणं हां सुरू होते. हां म्हणजे आधी चक्कर येऊन मान दुखते, चक्कर येते आणि डोकं म्हणजे दुखते, सगळं सोबत सोबत असतं. तर असा एपिसोड येतो की कंटिन्यू सुरूच असतो? एपिसोड येत असतो. सर्वायकल पेन. आणि हा पार्ट जास्त. Why I'm trying to question, because I want to evaluate the disease condition, whether it's a कि ये कहाँ जा रहा है, ये
सर दर्द हो रहा है, सर्वाइकल पेन भी है, चक्कर भी आ रहा है, तो कौन से डिसीज के तरफ जा रहा है. So I'm going to evaluate that. That's why some questioning I throwing to patient. हा And then इथे देख. असं हा. कुठे इथे एक हा साइड असते का? एक Left साइड side? हा 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 साइड इथे लेफ्ट नाही, इकडे नाही इथे इथे नाही, नाही. इथे इथे वगैरे इथून एवढंच. असा असं हा. लेफ्ट साइड टेम्पोरा. असं जेव्हा हे दुखते किंवा हम्म. चक्कर येते, मान दुखते, तेव्हा आणखी काय ओमेटिंग सेन्सेशन राहतात होतं? Episode. Normal. उलटी होते का? होत नाही वाटतं तसं मळमळ होते आणखी अं, तो प्रॉब्लेम आता जरा जास्त जाणवत आहे हा. किती 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 दिवसांनी येते असं की रोज येते आधी असं? मला हार्डली एक 8-10 दिवसांनी 12 दिवसांनी असं यायचं हम्म. आता ह्या 8 दिवसात कंटिन्युअस असल्यासारखं आहे डेली येतं. हा सध्या ह्या 8 दिवसापासून मी वर्स्ट सिच्युएशन मधून हे करत आहे सर्वाइव्ह करत आहे म्हणजे आता फर्स्ट सुरुवात केली एक 12 दिवसाआधी मला थोडंसं इंटेस्टायनल इन्फेक्शन झालं त्यामध्ये हनुमंत काय सर झालं ते सांग. हां ते मेडिकल टर्म यूज झालं, ओके मला समजलं नाही. हा. झालं असं की हम्म. मी जेवणाच्या संदर्भात माझं प्रॉब्लेम झालाय कसं? म्हणजे मला बाहेरचं खावं हा. लागलं टिफिन घेऊ नाही शकलो किंवा मी घरी जाऊ नाही शकलो आणि मी स्वतः बनवू नाही शकलो तर बाहेर पिठलं भाकरी वगैरे असं खाऊन हा. तर त्यावेळेस मग मला लूज मोशन झाले, उलटी एक वेळा झालं म्हणजे त्यावेळेस म्युकस निघालं बाहेर पहिल्यांदा लूज मोशन होतं का? म्हणजे नाही म्युकस फक्त स्टूल नॉर्मल होतं का? स्टूल नॉर्मल होता आणि त्याच्यात आव पडली म्हणजे. बरोबर आणि त्यावेळेस असं झालं की गॅसेस बाहेर पडायच्या हं. त्या इनव्हॉलेंटरी असायच्या म्हणजे माझा कंट्रोल नव्हता त्या गॅसेस बाहेर पडताना आणि त्या गॅसेस जेव्हा बाहेर पडायचं तेव्हा मला असं वाटायचं की ते गॅसेस जे आहे ते वेटी आहे म्हणजे हां त्याच्यातून स्टूल पास होत होता का? स्टूल गिन काहीच नव्हतं येत मी वेटी आहे हायजेनिक म्हणजे काय? वेटी म्हणजे मला असं थंड वाटत, हा. कोल्ड फील होत होतं. हां किंवा असं कधी कधी असं फिलिंग यायचं की बाहेर पडत आहे म्युकस त्या गॅसेस मधून नाही तर हे लॅट्रिनला बसतानाच होत होतं की नाही होत असं पण होतं? नॉर्मली असं जसं बसलोय मी इथे तरी व्हायचं ते अधनं हे 3 दिवसापासून फक्त बंद झालंय त्याच्या आधीपर्यंत चालू होतं हे ओके. तेव्हा पोट वगैरे दुखायचं का? हो इकडनं या साईडनं पोट जास्त दुखायचं आणि इथे म्हणजे रिपच्या जस्ट खाली काय तिथे पिठली भाकरच खाल्लं होतं ना? बाहेरचं खाल्लं होतं ना? हो बाहेरच हॉटेलमध्ये नाही हे आपल्या स्टेशन समोरचं पोलीस स्टेशन समोर हां. ठीक आहे. त्याच्या आधी पोटाचा त्रास तेव्हा त्या नव्हता? दिवस नव्हता बस तेव्हापासून सुरू झालाय हम्म. तर सुरुवातीला जेव्हा पोटाचा त्रास होता ना, हा. तेव्हा आव पडत होती, हा. तेव्हाही पोट या साईडला हो दुखत होतं? हो या साईडला पोट या साईडला दुखत. हम्म. पोट असं खूप दुखते अति की थोडं थोडं म्हणजे मला बिअरेबल असतं tolerable असतं उलटी ते. वगैरे होते? नाही फक्त ओमेटिंग सेन्सेशन होतं Sensation. आजपर्यंत उलटी झाली नाही तशी हा. आणि स्टूल नॉर्मल असते, फक्त स्टूल आव नॉर्मल असते असते त्याच्यात. हा आणि स्टूल म्युकस जे आहे ते डेली नाही पडत ते एखादी दिवस किंवा एखाद्या क्षणी म्युकस मध्ये असं थ्रेड असते की असं शेंबड्यासारखं? ते नॉर्मली फर्स्ट अटेम्प्ट किंवा एका अटेम्प्ट मध्ये नाही निघत मला कोणासोबत फोनवर बोलत राहिलो हम्म. या डोकं दुखते आहे, तर हे काय केल्याने ट्रिगर होते म्हणजे? जसं माझं So there was a complaint of mucus stool. There was a tenesmus also, which is not mentioned prominently here, but later on I revealed tenesmus, painful defecation, stool somewhat semi-solid, but that is the mucoid stool, mucus sensation and sensation of passing the gas or cold moisture flatus through the anal region. That was the sensation that patient describing, right? Then the patient also having the cervical headache, the stiffness, and then one-sided headache. Right now we have to evaluate कि ये जब patient symptoms बता रहे हैं तो ये हमारे mind में ये प्रोसेस होना चाहिए कि ये कौन से डिसीज के तरफ लेके जा रहा है. Don't just see or convert the rubric directly.
डोंट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जस्ट पर्सन की इसका स्वभाव ऐसा है, उसका ऐसा बात है ना. तो most for every each and every homeopath, each and every doctor, the foremost thing to understand first is the disease diagnosis, the underlying pathology. And with this, all the thing is important: the behavior, the gestures, the facial expression, उसके कपड़े कैसे, बाल कैसे, जो हम MSc में देखे, because it we are dealing with the psychiatric case plus physical ailments है ना. Psychiatric case, we have to evaluate all this simultaneously. That skill must be developed. ऐसे नहीं कि सीटिंग अलग नहीं होंगी ना, एक ही सीटिंग में वही समय में हमको सब कुछ करना है, बराबर. सो ऑब्जर्वेशनल सिम्टम कुछ है तो आप बाजू में नोट कर सकते हैं. अगर कुछ सिम्टम्स को थ्रो या एक्सप्रेस कर रहा है तो हमको लग रहा है कि ये क्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है क्या, बेनाइन पोजिशनल वर्टाइगो है क्या, है ना, हेडेक माइग्रेन की तरफ जा रहा है क्या. So if you are thinking some differential diagnose, in order to confirm that diagnosis, once the patient finish his or her narration or complaints, you can ask later on the confirmatory symptoms belongs to that disease condition or clinical condition, right? क्योंकि हर डिसीज में, जैसे मट्रामेडिका में, रेमेडी में जैसे कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर फीचर्स होते हैं, वैसे डिसीज कंडीशन के भी पिक्यूलियर फीचर्स रहते हैं. जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है क्योंकि वर्टाइगो भी और सर्वाइकल स्टिफनेस भी है, पर साथ में हेडेक भी है. अभी हेडेक कैसा, एपिसोडिक है कैसा है, वो ट्रिगर कैसे करता है, अभी लेटर ऑन बताएगा. जैसे लाइट से ट्रिगर करता है, नॉइज से ट्रिगर करता है, टेंशन से ट्रिगर करता है, सम इमोशन से ट्रिगर करता है, फास्टिंग से ट्रिगर करता है, लैक ऑफ स्लीप से ट्रिगर करता है. तो ये सब अगर होगा तो यू कैन कम टू द कंक्लूजन कि दिस कुड बी द माइग्रेन. देयर आर डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाइक अ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. देयर आर डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि ये बेनाइन पोजिशनल वर्ट है. अगर चक्कर आ रहा तो किसके साथ में है कि अलोन है चक्कर, बराबर. सो ऑल दिस थिंग्स और थिंकिंग प्रोसेस मस्ट बी साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन इन योर माइंड विथ एक्टिव लिसनिंग एंड अलर्ट लिसनिंग. तो ये स्किल हमको डेवलप करना है, बराबर है कि ऐसे नहीं कि पहले डायग्नोसिस के लिए समय दे दो, फिर पेशेंट को समझने के लिए समय दे दो, फिर ये समय दे दो, है ना. एट अ ग्लांस वी हैव टू अंडरस्टँड ऑल द थिंग्स, राईट. लक्ष कुठे दुसरीकडे जर डायव्हर्ट झालं, म्हणजे मी कोणासोबत फोनवर बोलत राहिलो, मग त्या गोष्टी निघाल्या की आपोआप ते मग कमी पण होतं. जुन्या गोष्टी, हा जुन्या म्हणा किंवा आपण कमी त्या झालं म्हणतोय ना. नाही, सुरू कसं होतंय आता, जसं 1 महिन्यापासून 2 महिन्यापासून जसं डोकं दुखत आहे एवढ्या दिवसापासून, आहे की नाही, तर इन बिटवीन तर बरं राहते ना. मग ते डोकं दुखण्यासाठी या मान दुखण्यासाठी या चक्कर दुखण्यासाठी काय फॅक्टर होतंय की ते त्रास सुरू होतो. थिंकिंग, ओव्हर थिंकिंग. जेव्हाही म्हणजे थोडस भूतकाळातला गिल्टपणा किंवा जेव्हा भविष्य काळातली अँझायटी वाढते, सो या बिटवीन मध्ये ते त्रास जास्त वाढतो. 2020 नंतर जेव्हा पहिला अटॅक आला त्याच्यानंतर किती हे आठवड्यानी 15 दिवसांनी सुरूच होता का मायग्रेनचं किंवा डोकं दुखणं हे ऑलमोस्ट बऱ्यापैकी थांबलं. ओके. हा, हे आता ह्या एक 6 महिन्यापासून नंतर मग आता. बरोबर. आणि मधात मी कोरोना पॉझिटिव्ह पण होतो. ठीक आहे. की एखाद्यासोबत बोललं तर माझं आपोआप ते कमी. समजा एखादं काही सोशल इश्यू असेल, पॉलिटिकल इश्यू असेल, याच्यावर चर्चा झाली, म्हणजे मी माझ्या दुखण्याकडे दुर्लक्ष केलं की आपोआप ते मग तिकडं. हां, तर सी नाउ लिसन केअरफुली. आत्ता ह्या 15 दिवसात माझं जे चालू आहे, इलनेस फॅक्टरमुळे मी थोडासा माझं म्हणजे निगेटिव्ह टर्म्स यूज होत आहे माइंड मध्ये. I think patient talking in Marathi, I have to convert it in the Hindi language, right? So अभी जैसे 15 दिन से म्हणजे जसं आता काफी मला डिस्ट्रेस में है. ऐसा पहले था कि 8-10 दिन से मैं काफी वर्स सिचुएशन में हूँ. पेशेंट ने पहले सिम्टम्स को डिस्क्राइब किया, एब्डोमिनल सिम्टम्स, स्टूल, म्यूकाइड ये है ना. फिर माइग्रेन, मतलब वो माइग्रेन जैसे पेशेंट को पास हिस्ट्री है, मतलब माइग्रेन पहले से ही है, उसके लिए मेडिसिन नेक्स्ट राउंड भी चाहिए.
दिया था मैंने, क्रोनोलॉजिकली सब टाइप किया है, आपको समझेगा वो। बराबर है। ट्राई टू सी द पेशेंट कैसे, लैंग्वेज कैसा है, पोस्चर्स कैसे है ना, इमोशंस क्या है। तो ये लिव्हर मध्ये इम्पोर्टेंट थोडंसं है। दुखायला लागलं स्टमक मध्ये. लिसन इट माझ्या केअरफुल। फिलिंग्स अशा होतात, म्हणजे मला अशी भीती वाटते की मला स्टमक कॅन्सर आहे का. घसा दुखायला लागला तर मला असं वाटतं माझ्या घशाला थ्रोट कॅन्सर आहे का. अशा ह्या फिलिंग्स येत आहे. त्याच्यामुळे मग खूप सारे ते ऍक्टिवेट होतात. आणि आत्ताची सिच्युएशन अशी होती ह्या 5-6 दिवसात. जो पेशेंट बोल रहा है कि मैं अगर कुछ तकलीफ हुआ तो मैं उसको एकदम हाइटन एंजाइटी डेवलप हो जाती है और हाइपोकोन्ड्रियाकल थॉट्स आते हैं कि बा मुझे कैंसर तो नहीं है, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, लीवर का कैंसर। सो दिस कुड बी हाइपोकोन्ड्रियाकल एंजाइटी। तो अभी ये हाइपोकोन्ड्रियाकल एंजाइटी है, जनरल एंजाइटी है कि पैनिक है या और कुछ है, देन वी हैव टू इवैल्यूएट, राइट। अशी निगेटिव्हिटी सुरू झाली की माझ्या बॉडीचा एक एक पार्ट दुखणं सुरू व्हायचा. म्हणजे जसं पोटामध्ये पोटामध्ये मला कसं वाटतं, म्हणजे जसं म्हणजे एखादा पेशंट आहे ज्याला खूप ताप वगैरे असतो आणि त्याला खूप हायली अँटीबायोटिक्स देतात आणि मग ते घेतल्यानंतर त्यांनी जेवण नसतं केलं, त्यावेळेस जसं पोटात भडभड होतं तसं वाटतं. ओमिटिंग सेन्सेशन सुरू होतात, डोकं दुखायला लागतं आणि त्या कानाचा म्हणजे लेफ्ट कानाच्या आजूबाजूचा पोर्शन दुखतो माझा त्या पिरियडमध्ये. कधी मग असं वाटतं की चेस्ट पण दुखायला लागली. मग काय होते मग हे जसं दुखायला सुरू होते तर? दुखायला सुरू होते तर हार्टबीट वाढतात माझे, पल्स वाढते. म्हणजे आज मी जेव्हा मोजलं, आजचं मी सांगणार आहे, हळूहळू येतो आजवर. पल्स माझे 97, 99 पर्यंत चालले जातात, 100 पर्यंत. बीपी नॉर्मल राहते. बीपी नॉर्मल म्हणजे 90. धडधड होते म्हणते ना. हो. आणखी काय होते मग? एक ठिकाणी राहते की असं बेचैन जास्त होते, बेचैनी घबराहट खूप होते. जास्त होते? हा, बेचैनी होते, एका ठिकाणी घबराहट बसलं होते. तरी बेचैनी होते, बसूच नाही वाटत. काय करतो मग तसं त्यावेळेस? काही नाही, जमेत तोपर्यंत मग मी फिरायचा प्रयत्न करतो, दुसऱ्या काही गोष्टीकडे कॉन्सन्ट्रेट करायचा प्रयत्न करतो. पण कधी कधी असं होते, त्रास एवढा असतो की ते मला जे करायचं आहे तिथं कॉन्सन्ट्रेशनच होत नाही माझं त्या जो गोष्टीवर. त्रास असतो तर तेव्हा काय विचारते? विचारतेच ना, म्हणजे सुरू कुठून होतं की मला जसे निगेटिव्ह थिंकिंग सुरू झाली, म्हणजे आता आपण मी पॉझिटिव्ह बोलत आहे, पण जशी निगेटिव्ह थिंकिंग सुरू झाली की अरे मला त्रास होत आहे, मला काही खूप मोठा आजार आहे का, मी जगणार आहे की नाही, मला मीन्स असं डायरेक्टली असं आय एम डाईंग अशासारखेच विचार येतात. मीन्स ते वाटतंच तसं. आणि जसं ते सुरू होतं तर मग हे इकडनं ऍक्शन सुरू होऊन जाते बॉडीतली. So start with the negative thinking, anxiety, health about which induce the more anxiety and more fear. With there is a hot flushes in the abdomen, है ना, hot flushes in the abdomen, palpitations, trembling, घबराहट, बेचैनी कि अभी क्या करूं और कैसे करूं, है ना। तो ये gives rise to a certain group of disease condition कि ये क्या है, फिजिकल डायग्नोस्टिक है, फिजिकल डिसीज है कि मेंटल डिसीज है. Where the patient, this is the episodic, where the patient try to move from the inside to outside, try to ask the friend, try to call the friends कि मतलब वो आप आओ, है ना, फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड से बात करने के बाद पेशेंट फील्स बेटर इफ ही इज एंगेज इन सर्टन conversation, then he feels better, right? So this पोटाच्या बाबतीत भडभड होणं, पल्स रेट वाढतात, छातीत खूप धडधड करतं असं खूपच, आणि डोकं दुखणं, मानेकडून जास्त दुखतं, मग वॉमिटिंग सेन्सेशन, ह्या सगळ्या गोष्टी होतात. 15-20 मिनिटं गेले, अर्धा तास गेला की हळूहळू हळूहळू ते कमी होतं. कोणाला मित्राला वगैरे बोलवलं किंवा त्याच्यासोबत बोलत राहिलं तर ते कमी होतं. थोडा वेळ शांत वाटतं. परत अर्धा एका तासाने माझं काही विचार सुरू झाले की परत तीच सिच्युएशन येते. आणि ही आज जरा जास्त झाली की मला 2 वेळा डॉक्टरकडे जावं लागलं. आपल्या बोरा सरांकडे गेलो आणि मग काही वेळ सरकारी हॉस्पिटलमध्ये झोपून राहिलो. दोघांनी चेक केलं, पल्स रेट वाढलेले आहे,
Again, important, when he consult to the doctor, doctor examine him and told that कि all thing is right, BP पल्स वगैरह सब ठीक है, ये कोई ऐसा शारीरिक तकलीफ या बीमारी के तरफ तो नहीं जा रहा है, आप कुछ टेंशन स्ट्रेस एंजाइटी में है तो यू जस्ट टेक अ स्लीप, यू जस्ट टेक अ रेस्ट, बराबर है कि नहीं? सो व्हाट इज दिस, क्या ये पूरा पिक्चर किस तरफ जा रहा है? एनीवन वांट्स टू शेयर देयर diagnostic thought process? Dr. Sunita madam comes to the conclusion that this is the case of GAD, generalized anxiety disorder. Is it right? Anxiety is there, sure, definitely. Fear is there. Fear of dying, कि अभी मैं बस खत्म मरने वाला हूँ. This sensation when it occurs, and this is the episodic phenomena. When the episode occurs where there is a hot flushes, देयर इज अ हेडेक भी है, स्टिफनेस भी है, चक्कर भी है, पाल्पिटेशन भी है, गर्म भी फील हो रहा है, ठंडा भी फील हो रहा है ना, बेचैनी भी हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ होने वाला है, बस अब मैं मरने वाला हूँ. तो दिस इंटेंस डिस्ट्रेस, बराबर, ये इंटेंस डिस्ट्रेस कौन से इसमें है, विच कवर दिस कंडीशन? Any others expression, the panic, any other? Try to evaluate this, क्योंकि हमने पूरे एंजाइटी डिसऑर्डर के जितने भी सब क्लासिफिकेशन है उसको डीपली हमने समझा है, पढ़ा है ना. exaggerated, but what exaggerated? Exaggerated is the just a terminology which define the intensity of symptoms. That is the hysterical बोल सकते हैं, exaggerated. I want the diagnostic terminology. Is it somatization? It is the IBS, it is the migraine, it's cervical spondylosis, OCD, depression है ना. जैसे comes to madam, comes to GAD, that is right. तो है ना, पैनिक, तो ऐसा डायग्नोस्टिकली बताइए कि क्या है. Very much anxious, right? But this is the person understanding you are sharing. Patient is anxious, looking is anxious, talk is anxious, speech is anxious, speech in the distress कि वो तकलीफ में है, उसको relief चाहिए, that is okay. But I want the clinical diagnosis. You can't write just the anxious because it is the dispositional features that reflect anxious. The person is anxious. That nature or state it reflects. It doesn't reflect the diagnostic clinical condition. Anyone wants to share? जो नहीं अटेंड करते हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्डिंग सुनिए, और जो अटेंड करते हैं वो अलर्ट रहिए, so that you can able to understand the things properly. जाण्याचं काय होतं, म्हणजे काय मला काय असं भीती- झालं की मग डॉक्टरकडे जायचं? माझी जेव्हा हार्ट रेट खूप वाढली तर मला असं वाटलं की मला काहीतरी होत आहे, म्हणजे डाईंग सेन्सेशन येत होते की आता मला मी संपणार आहे. See, खूप the वाढली. palpitation, तर मला the palpitation is so much कि अभी बस मरने वाला हूँ और फिर डॉक्टर के पास भागना, क्योंकि बचाओ बचाओ, मतलब अभी कुछ तो हो जाएगा. तो दिस डाइंग सेंसेशन, राइट, जैसे हार्ट अटैक में भी होता है कि बस हो गया खत्म, कंस्ट्रिक्टेड ड्राइंग चेस्ट पेन रेडिएशन, है ना. उसमें भी एंजाइटी, बेचैनी, उसमें भी डिस्ट्रेस फीलिंग रहता है, कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग रहता है चेस्ट में, है ना, एंड फियर ऑफ डेथ भी रहता है. तो सो वी हैव टू इवेल्युएट. तो ईसीजी करना चाहिए का पेशेंट का, है ना. ये भी सोचिए इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहिए, तो क्या हम डायग्नोस्टिकली उसको ये कंफर्म कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन से. ऑल थिंग्स मस्ट बी कम इन योर माइंड, है कि नहीं. ऐसे नहीं है कि होम्योपैथिक डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन नहीं बताते. हमारे डॉक्टर्स काफी कंजूस होते हैं इन्वेस्टिगेशन बताने में. एंजाइटी, हार्ट डिसीज, अबाउट psychosomatic complaint, yeah, psychosomatic disorder we can say, है ना. So it's a good differential diagnosis. Anxiety, heart disease, about, so this is the symptom.
एंजाइटी, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू हार्ट कि पेशेंट बोल रहा है कि बस सिर्फ एंजाइटी हार्ट से रिलेटेड है ना। और अगर हम ऐसे ऐसे अगर रूब्रिक कोई है ना, आप हो सकता है कि आप रूब्रिक भी ले लें एंजाइटी हार्ट डिसीज अबाउट, तो जो रेमेडी आएंगी उसमें ये सिम्टम्स, कौन सा सिम्टम है, ये डायग्नोस्टिक सिम्टम है, पिक्यूलियर सिम्टम है, पर्सन का सिम्टम है, स्टेट का सिम्टम है, सिफिलिटिक है, सोरिक है, साइकोटिक है, it must be evaluated with respect to this, right? So Dr. Shaini is come to the conclusion that this is the panic attack, right? So let us see. नाही डॉक्टरकडे जाण्याचं काय होतं म्हणजे काय मला काय भीती. असं झालं की मग So डॉक्टर my question is heart- कि आप जैसे पाल्पिटेशन हुआ, जब आप डॉक्टर के पास क्यों गए, तो फिर इंटेंसिटी समझ में आएगा, पेशेंट क्या बोलता है कि डर कि अभी कुछ बस मरने वाला हो, इज इट कि दिस हार्ट अटैक है तो पेशेंट अभी हार्ट अटैक से मरने वाला है? ट्राई टू इवेल्युएट दैट ऑल्सो, क्योंकि ऐसा होता है काफी केसेस में मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है और पेशेंट को चेस्ट में बर्निंग हो रहा है, चेस्ट में डिस्ट्रेस हो रहा है ना, बेचैनी हो रहा है। when the patient consult the doctor and doctor gives the antacid considering कि this is a simple acidity, और जब पेशेंट डिस्ट्रेस में और अनकॉन्शियस हो जाता है या पेशेंट की डेथ, तब समझता है कि दिस इज द हार्ट अटैक, है ना। सो डायग्नोस्टिकली एज अ होम्योपैथ, एज एवरी डॉक्टर मस्ट बी स्किलफुल। रेट खूप वाढली, हम्म, तर मला असं वाटलं की मला काहीतरी होत आहे. हम्म, म्हणजे डाईंग सेन्सेशन येत होते की आता मला मी संपणार आहे. हम्म, त्याच्यामुळे त्या भीतीने मला डॉक्टरकडे जावं लागलं. हम्म, मरतो आता मी हो, असं वाटलं. असंच वाटलं की संपलंय आता, आयुष्य संपत आलंय आपलं. निगेटिव्ह थिंकिंग नाही आली तर मी खूप चांगला असतो. बॉडी सगळी काम करते व्यवस्थित, हम्म, काही त्रास देत नाही. पण जशी ते थिंकिंग सुरू झाली की इकडं एक एक ऑर्गन माझा त्रास द्यायला सुरू करतो. आणखी आणखी असं आहे, म्हणजे तेच मला हे सगळं म्हणजे आता सहन न होण्यासारखं वाटत आहे. म्हणजे असं की काय चालू आहे, थोड्या फिलिंग्स अशा येत आहे. असं व्हायला नाही पाहिजे, कारण आतापर्यंत सगळी स्ट्रगल लाईफ गेली. आत्ता कुठं रिझल्ट येण्याचे चान्सेस आहे, म्हणजे 1-2 महिन्यात जॉईनिंग मिळायला चान्सेस आहे. तेवढे स्कोर करून ठेवलेलं आहे मी, कारण कोरोना मध्ये 3-4 वर्ष काही जागाच निघालेल्या नाही. तर ती एन्झायटी आहे की आता मला लागणार आहे आणि माझं हे असं चालू आहे. आणि या सगळ्या एपिसोड मध्ये सगळ्यात जास्त मला इमोशनल अटॅचमेंट माझ्या भाचीसोबत दिसतात. मला ती आहे ना, हा नॉर्मल आहे, तू फक्त विचार. बरं डॉक्टर, See, listen carefully. बरं डॉक्टर लोक बाकीचे, म्हणजे जी मी ॲलोपॅथी आता घेतली, हनुमंते साहेब, बोरा सर, हे सगळे म्हणतात की नॉर्मल आहे, तू फक्त विचार करणं बंद कर. ते विचार करणं बंद तर झालं पाहिजे ना. See, it's a very important input that the patient given to the doctor. अरे भाई घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, सोच रहा हूँ, पर सोच को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे काबू में नहीं है. सो अगर कोई दुखी है या कोई चिंता में है ना, विच इज नॉट रियलिस्टिक, इट इज समथिंग न्यूरोटिक, जो डिसीज में जा रहा है, जो डिसीज में पहुंच गया है ना, जो मेंटल डिसीज या साइकेट्रिक डिसीज कंडीशन में है, तो इफ यू आर जस्ट एडवाइजिंग हिम और हर
कि चिंता करना छोड़ दो और सोचना छोड़ दो, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क एनी। एंड दिस एडवाइस डोंट गिव, कि ये अगर आप देते हैं, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल सिजोफ्रेनिया पेशेंट, कल ही एक पेशेंट को डिफाइन किया, हु इज द डॉक्टर, कि डॉक्टर साहब सब बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है, मतलब अभी भी सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया इज द डिलूजनल डिसऑर्डर जिसमें भ्रम रहता है, मतलब एक समय भ्रम की बीमारी, कि उसे लगता है कि कोई तो भी मुझे सुन रहा है। रात में जब सोता है तो लगता है कोई तो भी मेरे बारे में सोच रहा है, बात कर रहा है, तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन आते हैं। कोई तो मेरे पीछे पड़ा है, मेरे इमेज खराब करने के पीछे पड़ा है ना, सुन रहा है ना। तो जब मम्मी पापा बाहर जाते हैं तो कोई नहीं रहता है, कोई बात नहीं कर रहा है, किसी को बात सुनाई नहीं दे रही, इसको ही सुनाई दे रहा है। तो फिर भी इसको लगता है कि नहीं, मुझे तो सुनाई देता है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो पेशेंट इज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द थिंग्स। अभी मैं अगर ये सिजोफ्रेनिया पेशेंट को, जहाँ पे डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, जो थिंकिंग प्रोसेस, जो थॉट्स प्रोसेस जो फिक्स हो गया है, इट इज नॉट अ फिक्स थॉट, जस्ट इट इज अ सिजोफ्रेनिया, द हायर मोस्ट इन द साइकेट्रिक इलनेस, साइकोटिक डिसीज। अगर आप जस्ट बोलोगे कि ये आपका वहम है, कुछ नहीं है, आप तो ठीक है, और पेशेंट को छोड़ दोगे, सो दिस इज नॉट द इनफ। वैसे ये साइकेट्रिक केस में जैसे होता है कि एंजाइटी इज सो ओवर पावरिंग, एंजाइटी एंड फियर इज सो ओवर पावरिंग, जस्ट telling them not to worry and take rest, take sleep, where the patient is sleepless and anxious and can't able to control his or her thoughts process, when that patient need a medicine first. Don't give advice, don't even counsel, don't give the counseling to the patient, counseling in the form, पहले प्रिस्क्राइब करो मेडिसिन, एंड देन सेकंड और थर्ड इसमें काउंसलिंग करो कि अभी ये करो, वो करो, सुबह घूमने जाओ, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, योगा करो, है ना, टीवी देखो, मूवी देखो, ये काम करो, ये यहाँ पे एंगेज हो जाओ, यहाँ इसमें बिजी रहो, देन यू कैन गिव द सम clues, some tips to the patient to improve further। बराबर है कि नहीं। कि जैसे अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, बहुत दारू पी लिया, मतलब पी के एकदम अपनी दुनिया में चले गया, और अगर आप उसको बोलोगे कि ये दारू पीना बहुत गलत है, तो मूर्ख वो नहीं रहेगा, मूर्ख बताने वाला रहेगा। सो डोंट डू दैट, है ना। तो ये, सो दैट्स व्हाई द अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, कि ये डेप्थ के इतना, इसको सिर्फ बताने से फायदा होने वाला है कि वह सोचो मत, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये भी हो सकता है, पर वो अगर रियलिस्टिक एंजाइटी है तो। पर जहां पे न्यूरोटिक है, जहां पे डिसीज इस्टेब्लिश हुआ है, तो सिर्फ ये बताने से कुछ भी काम नहीं होने वाला है, राइट। सो वी हैव टू बी केयरफुल हा अबाउट, मॅटर आहे ना हा आजार दोन असते, एक शारीरिक असते, एक मानसिक असते. हा हा मानसिक आजार right. So we have to understand, we have to explain the patients what is going on within you and what triggers your condition, right। ये समझना, और क्या करना चाहिए with the medicine, you have to do this and this, guidelines दे सकते हैं, बराबर है, पर don't rely on that only। मेडिसिन अगर काम करेंगी तो वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जो सुबह नहीं उठ रहा हो सुबह भी उठने लगेगा, जो पढ़ाई में नहीं कर रहा हो पढ़ाई भी करने लगेगा, जो रिलेशनशिप गड़बड़ है रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो जाएंगे, अगर मेडिसिन आपकी सही है। मतलब एक डिप्रेशन का केस था, सीवियर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दैट लेडी वाज, है ना, घर के लोग रोज बोलते थे सुबह उठिए अच्छा रहेगा, डिप्रेशन में आइसोलेटेड रहती थी लेडी, है ना, पर जब मेडिसिन दिया तो सुबह उठ के घूमने लगी। तो like this, so most important is your dynamic medicine that trigger the curative effects, right। शरीराला बघते म्हणून नॉर्मल सांगते. हा सोमॅटायझेशन विथ एन्झायटी आणि त्याच्यामुळे शेवटचा हे समजून मी तुमच्याकडे आलोय
की ठीक आहे काय इथे मला रिलीफ होऊ शकतं बस. आणखी काही सांगायचं आहे? काही नाही, मला फक्त बरं करा बस. झोप लागते बरोबर. सी द इमोशन एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशन कि वो कितना फ्रस्ट्रेट हुआ है, डिस्पेयर हुआ है कि मैं बस अभी थक गया हूँ, ये मेरी लास्ट होप है और मुझे एनी हाउ मुझे अभी ठीक कर दो, बस बहुत हो गया. So try to understand this, try to so that job as a doctor, when we understand the patient emotion, when we cure or give the smile to the patient, this is the most important, मतलब most precious responsibility बोलो या ड्यूटी है हमारी, कि जब हम दुखी पेशेंट को जब खुश करते हैं या उनके चेहरे पे खुशी देखते हैं, ठीक होने की खुशी, तो तकलीफ से बाहर आने की खुशी, और उससे जो हमको खुशी मिलती है ना, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बड़ी खुशी हो एक डॉक्टर के लिए, कि जो पेशेंट का सेटिस्फैक्शन या पेशेंट के दुख को खुशी में या स्माइल में या हैप्पीनेस में कन्वर्ट करना, बदलाना, पेशेंट को दुख से वो स्टेट से बाहर निकालना. सो दिस इज मोस्ट important and the precious job that all the doctors doing, right? Why he is not, the question is why he is not married since the 40 years. The question is right, that I think you will get the answer in the consequent information. जो slide है आगे उसमें मिल जाएगा आपको. Just listen it carefully. Video हो गया. This is the symptoms which comes since December 23. Epigastrium, frequent loose mucosity, वो जो बताया हुई है. डेवलप द सीवियर एंजाइटी आफ्टर फ्राइट, ओवर थिंकिंग अलोन से बढ़ता है, डाइवर्जन ऑफ माइंड और कंपनी से एपिसोडिक है. एपिसोड में क्या होता है ना, हेड सर्वाइकल रीजन एक्सटेंडिंग टू हेड, लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है. 2020 से ऑन एंड ऑफ इनिशियली फ्रीक्वेंट था, अभी वंस अ वीक, है ना. ओवर थिंकिंग से, नॉइज लाइट से साइलेंट. तो दिस इज द हेमोरॉइड्स की हिस्ट्री थी, ऑपरेट किया 2015 में. अभी इन फेब्रुआरी, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट, द इवोल्यूशन ऑफ डिसीज, कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ. तो 2020 में स्टार्टेड विथ फ्रीक्वेंट सीवियर हेडेक विथ हाई ब्लड प्रेशर हाई रहता था और सीवियर हेडेक होता था. तो ही शोन टू लोकल जीबी, बट डिस्पाइट ऑफ गिविंग द टैबलेट फॉर ब्लड प्रेशर एंड इंजेक्शन टू कंट्रोल द हेडेक एंड ब्लड प्रेशर, देयर वाज नो चेंज इन द ब्लड प्रेशर. So they refer that GP to the higher center, to the cardiologist, क्योंकि बीपी और हेडेक नहीं मैनेज हो रहा है, for further investigation and management. There the cardiologist done the ECG, but it was the normal, and prescribed the tablet considering कि this is the migraine case है. Next down, है ना. And अभी March 23 में started with sudden vertigo with cervical pain, prescribed tablet Vertin and clonazepam. Again, very important to see the previous doctor prescription so that you can assess कि वो डॉक्टर ने मतलब उनका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसा किया. अभी अगर अभी अगर पेशेंट को चक्कर है और सर्वाइकल पेन है, कि कम टू द डायग्नोसिस कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो हो सकता है नेक बेल्ट देंगे और वर्टिन देंगे कि चक्कर बार ठीक हो जाएंगे वर्टिन से. व्हाई ही प्रिस्क्राइब द क्लोनाजेपाम. एंटी एंजाइटी सीडेटिव है ना. तो ये एंजाइटी है, उसको भी मतलब डॉक्टर को उनको पाल्पेट हुई है कि दिस पेशेंट इज नॉट द केस ऑफ द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और वर्टाइगो, इट इज मोर ऑफ दैट. तो स्ट्रेस है, टेंशन है, तो इनको एंटी एंजाइटी टैबलेट या सीडेटिव टैबलेट जिससे नींद भी आए और दिमाग शांत रहे, ऐसा टैबलेट देना भी जरूरी है. तो ये very important to understand this process.
Then in June 23, complaint of mucus in stool with nausea. That time the doctor prescribed the probiotics. In September 23, started with the chest pain, BP was normal, and started the Ecosprin tablet, Ecosprin 25 for 25 days. But after the medication, the abdominal complaints get increased. In 4 December 23, attend the funeral of the relatives who died because of the esophageal cancer. उसका स्टेट क्या था, डिसीज क्या था? अभी 4 दिसंबर 23 को एक फ्यूनरल अटेंड किया रिलेटिव्स का, हु बिकम्स डाइड बिकॉज ऑफ द esophageal cancer. That time the patient becomes so much frightened and thought that what happens if I would suffer from such a terrible illness, as he also seen the similar cancer cases before that. अगर मैं इससे सफर होता हूँ कि क्या होगा, तो उसमें उसको वो थॉट से उसको एकदम डर गया. He mentally disturbed, as seen his close people weeping in a grief, started the anxiety about the self and the future. Next day he come to his village, but he used to take meal outside in hotel for 2 days. मतलब घर के लोग वहां नहीं थे, तो उसने बाहर ही खाना खाया, जैसे बताया कि भाकरी, झुनका भाकरी खाया पुलिस स्टेशन के सामने से, है ना. As his parents were not aware, he started with frequent loose stool. उसके बाद mucoid stool start हुआ, flatness and fullness in abdomen with nausea. Stool 5 to 6 times per day. Further develop abdominal pain with tenesmus. Stool changeable and loose intermittently. For that he seeks treatment from local GP, but no relief even though change in line of treatment. मतलब 2-3 बार लोकल जीपी के पास गया वो एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के बाद, बट इन स्पाइट ऑफ द एंटीबायोटिक्स, in spite of the medicine, there was a no relief. As abdominal complaint was going on, the thought, though taking treatment, this developed the severe anxiety about health and future. वही फेज में उसको सीवियर एंजाइटी है, फ्यूनरल में गया, पेट गड़बड़ हो गया, और फिर एंजाइटी और फियर डेवलप हो गया अबाउट फ्यूचर, फियर ऑफ incurable disease like a cancer. During that period, when the patient attempt to sleep at night, suddenly started with cervical pain with headache, घबराहट, palpitation, perspiration, trembling, chest pain, hot flushes. In abdomen with sensation of dying, which makes him restless and compel him to go outside in open air. तो घर से एकदम बाहर निकल जाता था. Was feel better for a while but again start, मतलब थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है और फिर से वैसे ही symptoms start होते हैं. He developed panic episode which last for 15 to 20 minutes. Next day he visited the local GP, है ना. इतना सब होने के बाद फिर से GP के पास गया. He prescribed antidepressant, मतलब उसको जीपी को समझ गया ये क्या केस कहाँ जा रहा है, एंटीडिप्रेसेंट दिया. बट पेशेंट अवॉइड टू टेक दैट मेडिसिन एंड कॉल एंड मीट हिज friend, feels better while patient was with his friend, but as soon as he come to his room again that episode come. जब friend के साथ में conversation कर रहा था तो patient feels better. मतलब कुछ भी तकलीफ है और conversation, कोई भी conversation with company में है तो patient feels intensely better. So he shown to try to understand whether this is the normal symptoms, common symptoms, uncommon symptoms, or symptoms from the person or symptoms from the disease condition. So he shown to government hospital, advised to take rest, but intermittently restless and anxious. Doctor told there is no serious problem, everything is normal. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, जीपी के पास भी गया, सबने बताया कि सब तो ठीक है, बीपी चेक किया, ये चेक किया, सब चेक किया, ईसीजी आपने कर लिया, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दिया, एवरीथिंग इज नॉर्मल. सेम टाइम अभी एलोपैथिक इतना फ्रीक्वेंटली जा रहा है तो इससे नहीं हो रहा, तो एक जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे वो विलेज में, तो उनको दिखाया. बट आफ्टर एग्जाम, अभी वो डॉक्टर ने एग्जामिन किया और देखा कि इसका बीपी तो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, और पेशेंट बहुत एंशियस कंफ्यूज स्टेट में है ना. पाल्पिटेशन इतना धड़ धड़ धड़, जब स्टेथो डॉक्टर ने ऐसा लगाया तो एकदम धड़ धड़ आवाज, जो पाल्पिटेशन था, है ना, स्टेथोस्कोप में काफी ऑडिबल साउंड था, और बीपी एकदम हाई था. तो डॉक्टर भी घबरा गए और बोले कि तुरंत आपका केस क्रिटिकल है, आप तुरंत हायर सेंटर में, बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ. देन अगेन पेशेंट ने हायर सेंटर नहीं गए, लोकल जीपी को दिखाया, और वो जीपी जो डॉक्टर है, जनरल प्रैक्टिशनर, उन्होंने सिप्लार
मेडिसिन दिए कंसिडरिंग द हाई बीपी एंड पाल्पिटेशन, बट उसके बाद भी पेशेंट को अच्छा नहीं लगा. सो ही अगेन विजिटेड टू सेम जीपी इन आफ्टरनून एट सेम डे आफ्टर ही रेफर टू हिम. हाँ, फिर ओ जीपी ने उसको फिर से हायर सेंटर के पास, मतलब होम्योपैथ ने तो भेजा पर वो गया नहीं, तो जीपी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जब गया और ये सब कंडीशन देखा, सिप्लार मेडिसिन दी, फिर भी अगर फिर भी उसको रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया, तो जीपी ने उसको हायर सेंटर में रेफर किया कि ये केस यहाँ का नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में जाइए. देन वो विलिंग नहीं था कि बड़े हॉस्पिटल में जाके दिखाऊं, या ये कि उसको लग रहा था कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है या ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है. देन ही कॉल टू मी फॉर सीकिंग द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, है ना. तो वो एक दिन पहले या 2 दिन पहले उसने कॉल किया, और मैंने फिर बोला कि ये डेज में मैं आता हूँ, आप ये अपॉइंटमेंट ले लीजिए एंड देन शो टू मी, राइट. सो अगर देखेंगे फिजिकल जनरल अपीयरेंस, लुकिंग एंशियस, राइट, है ना. बाल देखिए कैसे है, नॉट नीट एंड क्लीन. मुस्टैक देखिए, एपेटाइट लेस है, हंगर टॉलरेट है, क्रेविंग एवर्शन नॉट स्पेसिफिक है. स्टूल का मेंशन किया है चिप कंप्लेंट में, यूरिन, स्लीप डिस्टर्ब, वेकअप इजिली देन डिफिकल्ट टू स्लीप, ड्रीम्स फ्राइटफुल है. जब आया था तो तब बीपी 150/84 था, पर एब्डोमेन सॉफ्ट था, थोड़ा वेग टेंडरनेस था. ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेग टेंडरनेस था, नॉट. What is this? I don't understand. Seated a of chair. Okay, so है ना. अभी लाइफ स्पेस में शॉर्ट है क्योंकि डिटेल नहीं लिया, पेशेंट डिस्ट्रेस में था, है ना. तो ये कि हमको अप्रोच कैसे करना है. 8 दिन से पेशेंट डिस्ट्रेस में, 15 दिन में पेशेंट डिस्ट्रेस में, इसको एक्यूट मेडिसिन देना है, स्टेट मेडिसिन देना है कि क्रोनिक कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन देना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अप्रोच, कि कैसा अप्रोच लेना है, कौन सा रेमेडी सिलेक्ट करना है, उसका चाइल्डहुड पूछना है जिससे डिस्पोजिशनल एंड सेंसिटिविटी समझे, कि अभी का स्टेट पेशेंट का देखना है. इफ यू आर रॉन्ग विद दिस अंडरस्टैंडिंग, देन द डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा. पेशेंट डिस्ट्रेस कब से है, डिस्ट्रेस कब से, माइग्रेन ठीक है, माइग्रेन 2020 से है, पर अभी क्या है और कब से है, 15 दिन से है, 8 दिन से है, तो अभी उसको इवेल्युएट करके उसको ट्रीट करना जरूरी है. सो अगर ये डिस्ट्रेस में, पेशेंट डिस्ट्रेस में, पैनिक अटैक में एपिसोड्स आ रहा है, और आप चाइल्डहुड का और बाकी सब पूछने लगेंगे, तो पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर समझ ही नहीं रहा अपना मेरा प्रॉब्लम. सो so patient has struggling life till now, and he preparing for the civil exam since 12 to 15 years. मतलब बेसिकली उसको आईएएस आईपीएस ऑफिसर, जो सिविल एग्जाम से ऑफिसर बनना था, है ना. वेरी पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, बट वो कोशिश कर रहा था पर उसमें सक्सेस नहीं हो रहा था. बट ही डिड नॉट टर्न टू बी पॉजिटिव, बट लेस होप लॉस नहीं किया कभी उसने. वो चिकाटी से, फाइनेंशियली भी पुअर था, पैसे भी नहीं थे, बैकग्राउंड में सपोर्ट भी कुछ ज्यादा था नहीं, फिर भी उसने चिकाटी से अपना जो एम्बिशन है वो छोड़ा नहीं. Now, after so many hard work and adverse struggling, he is passed in the examination of तलाठी. जो तलाठी का एग्जाम था उसमें वो पास हो गया, स्कोरिंग अच्छा किया, और उसमें होप है कि अभी उसका सिलेक्शन हो जाएगा आफ्टर 15 to 20 12 to 15 years, राइट. अभी ये सब था और ये बीमारी आ गई, तो he become very disturbed. The sleep get disturbed, become anxious, he having anxious thought, and develop the abdominal complaints. There is a fear of cancer, anxiety about future. He also having the anger and resentment towards the political instability, as it might impact over his opportunity in job. His anxiety and negative thought get increased whenever he is staying alone in the room, but feels better when in company, in engaging conversation with friend. तो शादी नहीं करने का वही था कि उसको गवर्नमेंट जॉब या जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था वो कुछ तो मिले, उसके बाद ही वो सोचेगा कि शादी करना है करके, राइट. सो इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी किया था, वो भी सब नॉर्मल थे, राइट. Sitting age of the chair, that means the person is very anxious, inclined towards physician. This is good observation. After funeral episode, frightened easily,
So there was a history of become frightened, and then complaints get exaggerated, or different complaints get started, right? So in spite of the high BP, ECG and all blood investigations are come normal, right? So अभी इसमें कैसे प्रोसेस करेंगे, केस एनालिसिस कैसे करेंगे? This is the data. How to we person understanding, disease understanding, miasmatic understanding. कोई भी केस को कैसे देखेंगे? Try to understand this first. In every case, whether it is acute or chronic, irrespective, क्या important है वो समझिए. First most important is the disease in a person. मतलब जो मनुष्य है उसकी बीमारी क्या है, माणसातला आजार disease diagnosis first most important. Then person in a disease, that means बीमारी में पर्सन कैसा है, रिएक्शन ड्यूरिंग द इलनेस, द पेशेंट मेंटल स्टेट ड्यूरिंग द इलनेस. दिस गिव्स द क्रॉस सेक्शनल स्टडी. अगर हम उसका क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं तो मेंटल स्टेट समझेगा. एंड पर्सन एज अ होल, दैट मीन्स पूरा मनुष्य, पूर्ण माणूस कसा आहे एज अ होल, उसका डिस्पोजिशन कैसे, सेंसिटिविटी कैसे, बिहेवियर कैसे, रिएक्शन कैसे, विल कैसा है, इंटेलेक्ट कैसा है, इमोशंस क्या है, एक्सट्रोवर्टेड है, इंट्रोवर्टेड है, पर्सन एज अ होल, जैसे लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी हम करते हो. अभी ये केस में हमको ये समझना है कि पेशेंट को एक्यूट मेडिसिन देना है, स्टेट मेडिसिन देना है, या स्टेट और फेजिक या स्टेट मेडिसिन, या फिर क्रोनिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना है. इज देयर एनी वांट टू शेयर? कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल डाटा इज रिक्वायर, है ना. स्टेट मेडिसिन देना है तो स्टेट के लिए क्या लगता है कि जब से अभी का स्टेट कैसा है. In panic, because the condition miasmatic, this is the anxiety, this is the panic attack and panic disorder with migraine, and in the background there is the irritable bowel syndrome. So always we need here the state remedy, state medicine. If you go the disposition देखेंगे कि ऐसा है वैसा है और मेडिसिन देंगे तो नहीं काम करेगा. हमको अभी का स्टेट को समझना है और स्टेट को ही मेडिसिन देना है. अभी क्यों ये, हमको तो पूरा पेशेंट को ठीक करना है ना. तो स्टेट ये छोटा सा क्रॉस सेक्शनल स्टडी करके क्यों पेशेंट को मेडिसिन देंगे, डिस्पोजिशन देखेंगे फिर देंगे. someone may think like this, which is right according to him. See organon of medicine, हनीमन साहब ने क्या बताया है, this is person miasmatic. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट वी आर डीलिंग विथ. मतलब डीलिंग क्या, हम किसको ट्रीट करना चाहते हैं, वेदर इट इज अ फिजियोलॉजिकल डिसीज और पैथोलॉजिकल डिसीज. वी आर, दिस इज प्योर फिजियोलॉजिकल, बराबर है कि नहीं. तो इज देयर एनी स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी लाइक अ ट्यूमर है ना, लाइक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है तो अल्सरेशन है या कुछ है, नहीं है ना. दिस इज प्योरली वी आर डीलिंग विद द फिजियोलॉजी. अभी ये फिजियोलॉजी से फिजियोलॉजी को डील करना है तो कैसे प्रोसीड करें हम, राइट. व्हाट वी आर सपोज टू ट्रीट हियर मोस्ट, ये हमको पूछना है खुद को. वी हैव टू ट्रीट द सिक एंड नॉट द सिकनेस. तो हमको सिर्फ डिसीज स्पेसिफिक नहीं जाना है कि हमको ये पैनिक हमने डायग्नोस कर लिए तो गो कि एंजाइटी पैनिक अटैक ले लिया रूब्रिक और प्रिस्क्राइब कर लिया. फियर ऑफ कैंसर प्रिस्क्राइब कर लिया. फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज ले लिया और प्रिस्क्राइब कर लिए. डोंट डू लाइक दिस. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन कि वो सिकनेस में वो पर्सन कैसा है, वो क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर फीचर्स थ्रो कर रहा है, क्या इफ द माइजम क्या है, अप्रोच कैसे करेंगे, है ना. माइजम इफ इट इज द पैनिक है तो माइजम क्या रहेगा, साइकोटिक है, सोरिक है, माइग्रेन है तो माइजम क्या रहेगा. So it's a syphilis. We are handling the syphilitic condition. तो अप्रोच कैसे रहेगा, सी द ऑर्गेनन थ्रू द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन. aphorism number 5, try to understand this.
useful to the physician in assisting him to cure are the particular of the most probable exciting cause of the acute condition. स्टेट रेमेडी दे रहे मतलब ये एक्यूट ही है, तो इसमें एक्साइटिंग कॉज हमको समझना है. एज ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द होल हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक डिसीज टू अनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज विच इज जनरली ड्यू टू द क्रोनिक माइजम. है ना, तो हमको एक्यूट में एक्साइटिंग कॉज को समझना है कि क्या एक्साइटिंग कॉज हुआ और ये एक्यूट एग्जासर्बेशन हुआ या एक्यूट इलनेस आया है. तो स्टेट में भी यही लागू होता है. और अगर क्रोनिक कंस्टिट्यूशनल मतलब क्रोनिक कंडीशन है, प्रोलॉन्ग क्रोनिक कंडीशन है, तो हमको माइजमेटिकली हमको कंसिडर करना है, फंडामेंटल कॉज समझना है. when there is a physiology involved, that means when there is a physiology involved, we have to take the exciting cause, but when the case is chronic, we have to take the myasm, the constitution and the character in consideration. Try to understand this. Then try to see the understand the aphorism number 6, that is the unprejudiced observer. Now what the unprejudiced observer explained by the Hahnemann sir, well, the unprejudiced observer well aware of the futility of transcendental speculation, ki speculation which can receive no confirmation from experience. कि सिर्फ स्पेकुलेशन करने से ये ऑब्जर्वर, अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर का काम नहीं, ये तो प्रेजुडाइज ऑब्जर्वर हो गया ना. बी हिज पावर ऑफ पेनिट्रेशन एवर सो ग्रेट, takes note of nothing in every individual disease except the change in the health of the body and the mind. The changes that occurs in the health of the body and at the level of mind, that is the morbid phenomena or accident symptom, which can be perceived externally by means of the senses. So your senses must be active and alert so that you can able to perceive the change in the patient. That is to say, he notices only the deviation from former healthy state of the now diseased individual, which are felt by the patient himself, remarked by those around him, and observed by the physician. तो समटाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी चेंज क्या हुआ है, आपने जो पेशेंट को भी समझ रहा है, जो उसके जो साथीदार है, अकॉम्पनीड पर्सन है, उनको भी समझ रहा है, और फिजिशियन भी उसको ऑब्जर्व कर रहा है. All these perceptible signs represent the disease in its whole event extent. मतलब ये perceptible sign and symptoms reflect the whole extent, that is together they form the true and only conceivable portrait of the disease. जब हम ये चेंज को समझेंगे, ये देखेंगे, है ना, and on that basis we observe that and understand and evaluate that, है ना, this is we can say then the unprejudiced observer. कि ये कि जैसे स्पेकुलेशन की बात, ये ऐसा है तो स्पेकुलेशन कि ये ऐसा ही होगा, बराबर है कि नहीं. जैसे रजनीकांत का एक मूवी देखा जहां पे वो पुलिस इंस्पेक्टर था रिसेंटली. अभी वो टीम जाती है तो लड़का बोलता है, मतलब उनकी टीम में से जो भी है, स्पेशल टीम होती है, और जो मर्डरर होता है उसका दोस्त, जो छोटा लड़का रहता है, तो छोटा मतलब दोस्त रहता है उसका, वो तो भाग जाता है. तो रजनीकांत बोलता है कि छोड़ दो इसको. तो जो उसके जो जूनियर पुलिस पुलिस ऑफिसर रहते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये गरीब है. तो रजनीकांत का कहना है कि गरीब है मतलब झूठ बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है. वो गरीब है, दैट डजंट मीन्स कि वो झूठ ही बोलेगा. मतलब अमीर लोग झूठ नहीं बोलते. अगर आपने ये फिक्स कर दिया अपने माइंड में, तो आप उसको ठीक तरीके से आप प्रेजुडाइज हो जाएंगे. तो हमको देखना है कि वो गरीब है लड़का, उसका दोस्त, पर उसने अपनी दोस्ती निभाई, मतलब उसका इमोशनल अटैचमेंट है, मतलब वो अपने दोस्ती में ट्रू है, तो ये कभी धोखा नहीं देगा. बराबर है कि नहीं. सो द थिंग इज दैट कि ये एक सोच पे आप अगर कोई अपना माइंड फिक्स कर रहे हो, और कि बस ये ऐसा है तो ये रेमेडी यही आएंगी या यही रूब्रिक आएंगे या यही सिम्टम आएगा, देन इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द पेशेंट एज अ होल और ट्रू टोटलिटी, राइट. तो एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या है, ये हमको
everyone know, we go through it in the last to last, general anxiety last में भी गए है ना. तो ये पैनिक देखते हैं. Panic attack is a sudden episode of intense fear that triggers severe physical reaction when there is no real danger or apparent cause. When panic attack occurs, you might think you are losing the control, having a heart attack, or even you are dying, the sense of dying. And there is a lot of symptoms are there with accompanying. Some physical symptoms are there like a chills, nausea, abdominal discomfort, chest tightness, dizziness, lightheadedness, faintness, like this. The most important, sense of impending doom or sense of danger and sense of dying. And there is a rapid pounding heartbeat or heart rate, there is a palpitation. So this is the case of panic attack. We have to treat this panic attack. तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्या हमको ठीक करना है. दिस इज द मेंशन इन द एफोरिज्म व्हाट वी नीड्स टू. क्या हमको ये फिजिशियन को, हनीमन का कहना है कि फिजिशियन को ये समझना व्हाट इज टू बी ट्रीट इन अ person, what is to be treated, we are treating the in a person, right? इसका साइकोडायनामिक मैंने बताया है, अलग स्लाइड है, पर टाइम कुछ परमिट नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्ट केस में जाएंगे, केस एनालिसिस करेंगे. सो केस एनालिसिस. पेशेंट गॉट फ्राइटन्ड व्हेन अटेंड फ्यूनरल ऑफ हिज रिलेटिव. सी यहाँ पे अगर पूरा पिक्चर अगर देखेंगे तो ये एक एक्साग्रेटिंग एक्साइटिंग फैक्टर है ना. ये हमको ट्रिगरिंग फैक्टर मिलता है जहां पे पेशेंट फ्यूनरल अटेंड करता है एंड बिकम सो फ्राइटन्ड and produce the fear of death, produce the fear of cancer. He becomes so mentally disturbed as he seen his close people weeping in a grip, started anxiety about frequent. And उसके बाद खाना खाया, मतलब इम्यूनिटी कमजोर थी, खाना खाया, इन्फेक्शन हो गया, लूज स्टूल डेवलप हो गया है ना, एब्डोमिनल पेन डेवलप हो गया. उसके बाद उसका फियर और डेवलप मतलब बढ़ गया. मतलब पहले इमोशन, एंजाइटी, फियर, then physical complaint, and again because of that physical complaint emotion become intense, the fear become intense, which develops the fear of cancer and start episode of chest pain, घबराहट, palpitation, tingling, और उसके बाद ये panic episode develop हो गया. Now this panic attack which is senses here, the why this is syphilis, you must have the reason behind it. The senses become out of control in it. Patient sense में रहता है, he is not in his control. All things get exaggerated. Even the patient develop the delusion. Even the fear is so unstructured. The fear is so intense, so exaggerated. That's why the panic attack comes under the syphilis. You can refer for even detail the DSM-4. As there is a chronic episode of headache, we start with the pain and stiffness in the neck, then severe head pain along with nausea, aggravated by noise, aggravated by light, induced by stress, negative thought, anxiety, fasting, and this phenomena pointed towards the diagnosis of migraine, which is the psoriasyphilitic, right? So this is panic attack, migraine. But query is there, जो आओ एंजाइटी बैकग्राउंड में था, तो वी कैन से इट इज IBS. Here the most distressing illness is the episode of panic attack which start recently as an acute, so we have to treat this first and then patient require chronic constitutional remedy. एक बार ये episode चले गया तो फिर chronic constitutional remedy to overcome the recurrency or to for the migraine or IBS, right? Rheumatism, syphilis. Now, in order to deal with such a syphilitic disease, we need to consider its change nature, as mentioned in the Organon of Medicine, aphorism number 6. Right? All are agree with this, or someone wants to give the constitutional medicine as directed by Dr. Samuel Hahnemann. In the aphorism number 6, we go through it. Totality of symptoms, the miasmatic totality. क्या होना चाहिए totality? Consider all data. Anyone wants to share the totality? Frank Syphilis, horrible sad story affects her profoundly. Okay. Is it the applicable rubrics? This
पूरे पिक्चर को ये अप्लाई होता है. डेथ कन्विक्शन ऑफ सेंस ऑफ डाइंग. Elements from fright. Let us see what's the rubric we have derived with the miasmatic totality. If there is a miasmatic totality, that means the rubric must be higher range. So first most important is the elements from fright, which is the exciting cause, which must be there because this is the state remedy, or this is the state totality or acute totality. Because this is the intense syphilitic. Fright is syphilitic. Fear is psychotic. Anxiety, fear, psychotic, soric. So we are dealing with syphilis, and syphilis hai, cause bhi syphilis hai. So you can take. You can't take the elements from anxiety in the panic. Because panic is syphilis and you are taking the sora, anxiety, as elements from. So whatever the जो disease है उसका अगर cause भी आप देखते हो उतना intense चाहिए ना. That destructive चाहिए उतना, syphilitic चाहिए. आप सोरिक कॉज लेंगे तो नहीं होगा ना. बराबर है ना. सोरा को इतना सोरा एकदम सिफिलिस नहीं डेवलप कर पाएगा ना, एंड इमीडिएट इतना फास्ट. इट रिक्वायर्स द प्रोलॉन्ग टाइम. फियर, पैनिक अटैक, ओवर पावरिंग. दिस इज द मोस्ट यूजफुल. आप पैनिक अटैक में ये कंसिडर कर सकते हैं. इफ यू आस्क मी द कॉमन जो रुब्रिक है, पैनिक अटैक, ओवर पावरिंग. देयर इज अ फियर, द थिंकिंग, thought, anxiety and fear which develop the panic attack. So panic attack overpowering the all emotions. So you can take the fear, panic attack, overpowering. Delusion, die about to. Is it the situation that the patient suffer with the heart attack where there is a patient sense that I am going to die? So we can take it as a delusion, I am going to die or die about to die. This is syphilitic delusion disease. He is suffering with incurable. मतलब वो कैंसर हो रहा है, लंग का कैंसर है, लीवर का कैंसर है. Anguish aggravated alone in. This is important. Not all panic patient seek help or want the company. Not all anxiety patient want the company and get intensely. Here the patient get intensely better with the conversation and company and gets aggravated by. So amelioration is more of psychotic and aggravating is more of soric or syphilitic. So always take the aggravating factor than the ameliorating factor. Always consider the aggravating factor. Anguish alone aggravation, right? So what remedy you expected or suspected or anticipating? What remedy you are anticipating by this or by your totality? Delirium with fever. Because it is the fear है, दिख रहा है, anxiety दिख रहा है, तो बस अमोनियम ही रहेगा. तो see the differential diagnosis, try to repertorize it so that you can get the group of remedies and you will able to differentiate that remedy. Anguish alone aggravation and elements from fright. This is most the entry point आप समझ सकते हैं. Then differentiating other rubrics भी आप consider कर सकते हैं. So if you repertorize it properly, then the group of remedy that comes is the phosphorus, aconite, argentum and arsenic. ये group of remedy आ रहा है. उसमें anguish alone aggravation, anguish alone when डिस्ट्रेस में, जब अकेला है तो ज्यादा डिस्ट्रेस में जाएगा, अगर किसी की कंपनी मिल गई तो डिस्ट्रेस कम हो जाएगा, या फिर डिस्ट्रेस में नहीं जाएगा. पेशेंट feels better by company, right? तो अगर ऐसा है तो the remedy only one is the phosphorus, but we will see the differential क्या आता है. तो रेमेडी डिफरेंशियल एकोनाइट अर्जेंटम देखते हैं हम कि कैसा है. अभी एकोनाइट को समझते हैं.
उसका सिफिलिटिक एंट्री पॉइंट ही देखेंगे, पूरा पूरा नहीं एकोनाइट में बताऊंगा. The aconite miasm is syphilis. Speed is very fast. Thus for large quantity. Elements from fear, fright, shock, vexation, remote effects of fright, all these you get in the aconite. Then aconite syphilitic, you can say great anxiety and unconsolable anxiety. Intense fear and unconsolable anxiety. Agonizing fear and restlessness accompany every ailment, however trivial. Intense fear so much that the patient becomes frantic, scream, groan, knaves the fist, bites the nails, want to die. Panic state where the patient becomes sudden, violent internal earthquake, like it is internal earthquake with palpitation, red face, vertigo, one-sided numbness, faintness, perspiration, trembling, dyspnea, like this. Fear of fright remains. This is wonderful rubric. Fear of fright remains for a long. जैसे कि देख लिया है और जो फ्राइट हुआ है, वो जो डर है वो अभी भी उतना ही चल रहा है. अभी को किसी ने सांप देख लिया है, किसी ने कुछ ऐसा इंसिडेंस देख लिया जिसमें वो इंटेंस फ्राइटन हो गया, फ्राइट हो गया, पर एज अ डेज पास आउट दैट फियर इंटेंसिटी गेट्स रिड्यूस एंड पेशेंट बिकम्स नॉर्मल. पर ये अभी 2 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, उसका जो इंटेंसिटी ऑफ फियर है उतना ही है. मतलब फियर ऑफ फ्राइट रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसका जो डर है फ्राइट का वो इंटेंसली अभी भी कैरी आउट हो रहा है और उससे डिस्टर्बेंस आ रहा है और डिस्ट्रेस में जा रहा है. दिस rubric is very important. There are only 2 remedies. One is the aconite and the second is the, anyone want to share second remedy for this rubric? Fear of fright remains long. दूसरा रेमेडी कौन सा है? Ailments from fright and the fear of fright remains. The remedy is opium. ओपियम वेरी इंपॉर्टेंट. फ्राइट का हिस्ट्री है तो डिफरेंशिएट कीजिए एकोनाइट और ओपियम में. फ्रैंटिक फॉर्म, टेरर, इंपेशेंस, डिस्ट्रक्शन, एंजाइटी, इनकंसोलेबल. इनकंसोलेबल मीन्स कंसोलेशन मतलब कितना भी समझाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. The patient becomes so much anxious. See that there are a lot of remedies that not only aconite. Delusion, dying he is. Fright, aggravation, elements from accident, from sight of new. रिसेंट अगर हो रहा है एक्सीडेंट और फ्राइट, सो मच फियर और फ्राइट में, टेरर में है, सो मच इंटेंस फियर है, अनकंसोलेबल एंजाइटी एंड फियर है, तो think of this first remedy, that is the aconite in high potency, not in the 30 or 200, 1m or 10m. Fright elements from newborn in, मतलब न्यूबॉर्न में अगर आपको समझ रहा है, आप इवेल्युएट कर रहे हैं कि अरे वो फ्राइट अंडर गॉन द इमोशन लाइक अ फ्राइट एंड देन कंप्लेंट स्टार्ट. जैसे कन्वर्जन है, एकदम से आवाज आया और पेशेंट बच्चा एकदम स्टार्टल हो गया, डर गया और कन्वर्जन शुरू हो गए. थिंक ऑफ दिस रेमेडी, दैट इज द एकोनाइट. एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रिसेंट एंड न्यू. 2 साल हो गए, 4 साल हो गए और फिर आप फ्राइट एलिमेंट्स फ्रॉम लेके एकोनाइट देंगे तो दैट विल नॉट वर्क. बिकॉज डिसीज पैथोलॉजी चेंज होती है, माइजम बूस्ट होता है, चेंज होता है. सो ये नहीं काम करेगा. तो इज इट एकोनाइट देना है. अभी अर्जेंटम नाइट्रिकम, हरिडनेस इज द वेरी की फीचर फॉर द अर्जेंटम नाइट्रिकम. हरिडनेस, अगर हरिडनेस नहीं है, हास्टीनेस नहीं है, इम्पेशंसनेस नहीं है, डोंट थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम. स्लो है, शांत है, आराम से बैठा है, बात कर रहा है, तो डोंट थिंक ऑफ अर्जेंटम. The need of the argentum is the love and affection, and it's a tie. Mostly psychotic, syphilitic. Speed is very fast in the argentum. Why I'm mentioning here speed? Speed of the disease, speed of the person. Hot, thirsty, left side, nervous, hurried, and impulsive patient. It anxious and timid. Impulsive, very impulsive. Irrational, the strange thing. विचित्र बिहेवियर जैसे बोलते हैं ना, विचित्र बिहेवियर है ना, कुछ भी करेगा. इम्पेशंस रहेगा, हरीड रहेगा, हस्ती रहेगा, स्पीच भी हस्ती रहेगा, एक्शन भी हस्ती रहेगा. ही हैज ऑलवेज द डिल्यूजन दैट डिस्पाइज बाय हिज फैमिली, छोड़ दिया फैमिली ने, बाहर कर दिया. फोर्सेकन, निग्लेक्टेड फीलिंग काफी प्रीडोमिनेंट रहता है इसमें.
This single remedy rubric, you can see the death presentiment of predict the time hypochondriasis in. There are only a two remedy. One is the aconite, second is the argentum nitricum. Death presentiment of मतलब death की हाँ मेरा मरण पक्का है, इतना की टाइम भी बताते हैं. इन हाइपोकोंड्रियासिस, वेयर देयर इज अ हाइपोकोंड्रियासिस, एंजाइटी कि हार्ट अटैक आने वाला है, बस अभी मरने वाला हूं, and predict the time so precise. The think of argentum and aconite. Delusion neglected his and despised by his family, कि फैमिली ने छोड़ दिया है, फैमिली ध्यान नहीं दे रहा, मैं अकेला पड़ गया हूँ. 4 फीलिंग वेरी प्रोमिनेंट फीचर. डिल्यूजन वर्क है, डिस्पेयर हाइपोकोंड्रियासिस से निराश हो गया, हाइपोकोंड्रियकल एंजाइटी में, एक्साइटमेंट फ्रैंटिक, फियर पैनिक अटैक, ओवरपावरिंग बट क्राउडिंग. पैनिक अटैक, ओवरपावरिंग, क्राउडिंग. तो एक ही रेमेडी मेंशन किया ये रूब्रिक में, दैट इज द अर्जेंटम नाइट्रिकम. इज इट क्लियर? आर्सेनिक में डीप सीटेड इनसिक्योरिटी आपको दिखेंगी. आर्सेनिक ऑलवेज नीड लव, अफेक्शन, वांटिंग सपोर्ट, and speed is very fast in the arsenic. The arsenic is very anxious and conscientious, conscience of anguish, inconsolable anguish with complaints and lamenting. Inconsolable fear, here inconsolable anguish with complaints and lamenting. Anguish driving from place to place, tremendous restlessness, agonizing fear of death, despair of recovery, violence, self-torture, and suicidal impulses. You can see in the syphilitic arsenic. Here you can see the fear, panic attack, overpowering. वहां पे क्राउड है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम. यहाँ पे अगर पेशेंट को नाइट में हो रहा है, नाइट एग्रावेशन है, तो थिंक ऑफ आर्सेनिक एल्बम. Kill desire to in drunkards, lamenting, moaning, loud, piercing. Mania madness wants to be held desire to be. Mania madness wants to be held. So this is delirious rubric, highly syphilitic rubric. I have selected this rubric in one of the psychiatric case. You will get this case. तो ये है. तो aconite must be considered during the panic attack. जो पूरा पिक्चर है panic attack का पिक्चर है. So you can think of aconite, but during the panic attack. So always give some medicine which is used in during attack. मतलब हम जब अभी जो स्टेट मेडिसिन देंगे तो ऐसा नहीं कि अटैक बिल्कुल आएगा नहीं. जैसे माइग्रेन में बोलते हैं ना, माइग्रेन का एपिसोड आपका इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम होगा, पर जब भी अटैक आएगा आपको एक्यूट मेडिसिन लेना पड़ेगा. तो माइग्रेन के केस में मैं 2-3 मेडिसिन जो प्रोबेबली आ सकती है विथ रिस्पेक्ट टू कॉजेशन एंड सेंसेशन, तो मेडिसिन दे देता हूँ. तो वैसे ही पैनिक अटैक में आप आंख बंद करके एकोनाइट 10 या एकोनाइट 1M दे सकते हैं, 10M भी दे सकते हैं, क्योंकि यू विल सी द रिजल्ट कैसे आता है. Arsenic album not cover anguish which is aggravated by alone. Argentum is more anxiety about health along with more nervous and hurriedness and impulsiveness which is not seen. So final selection is the phosphorus, the fright and the anguish alone, and delusion of dying. So phosphorus was selected on the basis of this. The first prescribed the phosphorus 1M. Higher, see here we required the high potency, not a 30 or 200. We are dealing with the panic attack or the intense emotion. And SOS aconite 10M. See the follow-up in the, see the follow-up again. देखो 25 तारीख को मेडिसिन दिया है, 26 तारीख को मतलब मंडे को मेडिसिन दिया, ट्यूसडे को पेशेंट को बुलाया आफ्टर 12 आवर्स के पहले ही आया. आप कल बताओ, मतलब इतना तकलीफ में है पेशेंट, तो नेक्स्ट डे उसको बुलाया. देखो कैसे. नमस्कार साहेब, बोला. कालच्यापेक्षा आज बेटर फील आहे. फक्त काही सिम्पटम्स म्हणजे काल रात्री झोपताना अभी डोंट एक्सपेक्ट की पूरा पेशेंट ठीक होगा, पर इंटेंस येत होतं, एक्साइट कम काही हो. वेळ राहत होतं, परत थोडं शांत होत होतं आणि परत तसं झोपेपर्यंत साधारणतः ते चालू होतं. झोप उशीर आली त्याच्यामुळे, कारण मी थोडंसं मग नर्वस फील करत होतो. किती वेळ उशिरा आली? म्हणजे मी 9:30लाच मी बेडवर गेलो. गेला. हां. किती वाजता लागली? नियर अबाउट 11:30. दीड तासानंतर. दीड तासानंतर, झोप हां. कशी होती? हां, झोप अधनं-मधनं उघडत होती. म्हणजे असं कोणी जर रूममध्ये येऊन गेलं असेल तर माझ्या ते लगेच लक्षात येत होतं, मी पाहत होतो. येत होतं का कोणी?
हा म्हणजे ताई वगैरे कधी इकडून तिकडून व्हायची तर तेवढंच. हा ते एक 12 पर्यंत झालं असेल. नाही म्हणजे 12:30 त्याच्यानंतर आहे, मला वाटतं 2-2:30 वाजता पण असा एक इन्सिडेंट झाला की भाऊजी उठले आणि मग मी पण, मला लगेच जाग आला ते का उठले म्हणून असं. हा अशी कंटिन्युअस झोप Anxiety नाही. आणि पाल्पिटेशनचा असा एपिसोड वगैरे आला का? ते एपिसोड येत होता ना पाल्पिटेशन. काल जसे एपिसोड आले तसे त्या सिव्हिअर मध्ये नाही आले. नाही आलं. हा पण झोपताना जे मला वाटत होतं की मला म्हणजे असं अटॅक तर नाही येईल असं ते फील होत होतं, कारण आणि ते जे येते ना तर अशी पोटातून धडकी भरते आणि मग वरती चढते ती. आणि मग तेव्हा वाटतं असं एकदम म्हणजे हे प्रेशराईज वाटतं इथं. आज दिवसभर कमी होतं, म्हणजे बेसिकली असं झालं की मी आज दिवसभर बाहेर फिरण्याचा प्रयत्न केला मित्राला घेऊन. तर बाहेर खूप बरं वाटतं, म्हणजे मी जेव्हा फिरत असतो मी एका ठिकाणी बसलो की ते जे काल तुम्ही म्हणत होते स्टिफनेस, म्हणजे मानेमध्ये मला जे विकार आणि सोबत असलं So in general, we can see the intensity of the complaints and the episodic frequency and intensity gets better, and somehow patient can able to manage his emotion and they dare to sleep. मतलब नींद कुछ तो हुई है. No, it is wake up easily and the sleep was acute. So overall the 50% better. जब last में पूछा anxiety, overall patient after 24 hours, next day the patient 50% better, anxiety and fear better, sleep improve, thought goes easily. मतलब पहले जो थॉट्स आते थे और जो अटैक इनिशिएट होता था, तो अब सोच जो फियर एंजाइटी वाली सोच है वो इजीली उसको ओवर पावर कर सकता है पेशेंट. नाउ अगेन इम्पोर्टेंट इज द 1M दिया है, 10M नहीं दिया है ना. हम 10M भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज कंसिडरिंग दिस पैनिक अटैक. एंड अगेन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैं मेडिसिन, एक दो केसेस ऐसे हुए कि छोड़ दिया एक ही, तो इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स थोड़ा सा और बढ़ने के चांस होते हैं. तो 2-3 डोज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक नेक्स्ट डे ही पेशेंट को बुलाना था, इसलिए एक डोज दिया. अगर पेशेंट को एक हफ्ते बाद अगर बुलाता या 10 दिन बाद, तो हो सकता था ये 2 या 3 डोज देता है ना. तो नेक्स्ट डे भी पेशेंट को फिर से एक फॉस्फोरस 1M का ड्रॉप दिया है स्टार्ट डोज, एंड देन दूसरा मेडिसिन 3 आवरली लेने के लिए बोला है. अभी ये 26 और फिर 1 तारीख को पेशेंट को बुलाया है ना, मतलब 6 दिन बाद या नेक्स्ट मंडे. So now in the consequent follow, he can control the emotional thought, giddiness, chakkar, abdominal pain भी improve है. One episode of panic attack आया, that time patient took dose of 10M. मतलब पैनिक अटैक आया जब वो, मतलब पैनिक अटैक इतना सीवियर, मतलब सीवियर ही था जब वो मार्केट में था. और उसने एक उसका एक्सपीरियंस बताया कि जैसे ही उसने एकोनाइट 10M लिया, within a second patient feels the improvement within it. मतलब मेडिसिन का असर उसको क्विक दिखा कि ये मेडिसिन अभी काम कर रही है. तो वो एकदम सरप्राइज हो गया कि होम्योपैथिक मेडिसिन की, मैंने ये मेडिसिन लिया और पूरा जो एंजाइटी, फियर, पाल्पिटेशन, हॉट फ्लशेस था एकदम गायब हो गया. So such a type of medicine so act intensely quick. So you can think this during the attack, है ना. तो फॉस्फोरस 1M फिर से एक ड्रॉप दिया, मतलब ये 3rd डोज है, और 1 हफ्ते बाद बुलाया पेशेंट को. नाउ पेशेंट फील्स बेटर. 1 हफ्ते बाद पेशेंट फील्स बेटर. देयर इज एंजाइटी रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ जॉब. वो पैनिक अटैक नहीं है, पर एंजाइटी काय के लिए, फ्यूचर के लिए, विच इज द स्टोरिक इन नेचर, आफ्टर थॉट्स एंड न्यूज. मतलब जॉब लगेगा, है ना, फ्यूचर सिक्योरिटी, है ना. Out of eligible candidate, blackouts, palpitation, feels over whole body, aggravation, tension. No episode of severe headache, abdominal complaints are better, and stool are normal. तो intensity panic attack वैसे नहीं है. Again, I prescribe the phosphorus 1M 1 dose and B6 SL for 1 week. Again, because of some acute ये था, कुछ तो acute खा लिया पी लिया, ailments from था, कुछ नहीं मेंशन नहीं किया. Patients develop the throat pain, which is not in the past, which is aggravated by night, aggravated by cold, and there is a sensitivity to fanning. So I prescribed that time the acute medicine 2 to 3 dose, the Hiparsulp 200.
right? Considering that acute totality. फिर आफ्टर द उसके नेक्स्ट फॉलोअप में सर्वाइकल पेन, ऑक्सीपिटल पेन, हेड ऑक्सीपिटल हेडेक, किडीनेस, चेस्ट पेन, स्लीपीनेस, है ना? एक थोड़ा सा एक एक्यूट एपिसोड था जहां पेशेंट्स डेवलप द स्लीपीनेस, वांट्स टू बी क्वाइट, lie down, desire to be, and the patient was thirstless, which was not a panic attack. This is the headache which trigger because of some reason. That time that picture seems to be a gelsemium. That's why I've given the gelsemium 1m that time and the SL for 1 week. And after that, if you see the follow-up of 29 January 2004, 25 December or almost after a 1 month, cervical pain भी better था. Now he started interacting with the people. Panic attack intensity and frequency is much better. Fear disease about fear of cancer is much improved. Now you can see the patient improvement at the all level. बराबर है. That's why I prescribed the SL for 1 week again. Now if you see the sleep becomes much better. खूप मस्त झोप येत आहे. Frequent abdominal discomfort था, tenesmus था, one there tenesmus. हाँ, and there was an episode of tenesmus with palpitation and chest pain. तो यहाँ पे थोड़ा एंजाइटी और उसको बैकग्राउंड में जो ड्यूटी और सिलेक्शन का जो एंजाइटी था वो भी काफी ज्यादा उसको सता रहा था. एंड इन बिटवीन ही टुक द डोज ऑफ एकोनाइट 10m. दिस इज सेकंड डोज. तो कंसिडरिंग द एपिसोड एंड द बैकग्राउंड में जो एंजाइटी है या इनसिक्योरिटी है, then I prescribe here the fourth dose as a phosphorus 10m, 1 dose, right? And then SL for 1 week. Because I thought ki in spite of giving the phosphorus 1m, the condition is not that much, मतलब एपिसोड नहीं आना चाहिए था. दो एंजाइटी वगैरह सोरिक एंजाइटी रही तो इट्स वेल एंड गुड, बट एपिसोड नहीं आना चाहिए which is syphilitic in nature. तो I jump on the higher potency, that is the phosphorus 10m. So after a phosphorus 10m, the follow-up after 1 week, the whole week was better. There was no episode of panic attack and no episode of headache. Even the abdominal complaints was better. Like here you can see the patient is better at all level. जहाँ पे phosphorus 1m का SL छोड़ के SL दिया था, जहाँ एपिसोड की इंटेंसिटी कम हो गई थी, तो एपिसोड फिर से आ गया. That time I evaluate and prescribe the higher potency, that is phosphorus 10m. अभी ये phosphorus 10m के बाद फॉलोअप ऐसा है कि पेशेंट इज एब्सोल्युटली बेटर, राइट? पेशेंट इज एब्सोल्युटली बेटर. 13/2. अभी अगर कुछ एक्यूट होता है आफ्टर एक्सर्शन एंड सन एक्सपोजर, कहीं तो बाहर ऑफिशियल काम के लिए गया था तो सर दर्द या कुछ हुआ था, तो एक ब्रायनिया 1m. अभी जो भी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर फॉस्फोरस ही हमारा कोर मेडिसिन है या स्टेट मेडिसिन है, या इवन इफ यू थिंक इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, सो व्हाट एवर एक्यूट मेडिसिन इज coming up is must be have the relationship with the your first medicine or state medicine or constitutional medicine. So Bryonia has a complementary relationship with the phosphorus. So acute, considering the acute totality, I prescribe the Bryonia 1m for 1 to 2 days. फिर उसके बाद का follow acute was better, no episode of headache, no episode of panic attack. Minor discomfort in abdomen and after eating. Tenesmus minor था, तो tenesmus था, intestinal तो functionally था, considering irritable bowel disease which is the psoriatic in nature. That means panic attack से अगर syphilitic दूर हो रहा है और अगर psoriatic surface पे आ रहा है तो don't need to worry. तो अगर वो सिर्फ tenesmus है ना, और frequency stool की सिर्फ 2 बार थी, so don't need to worry and don't prescribe on that, or don't prescribe even or repeat that main remedy, that is the phosphorus. So I prescribe the SL. और उसके बाद जो भी था वो SL ही prescribe हुआ. पेशेंट को 1 हफ्ते का मेडिसिन दिया, 2 हफ्ते का मेडिसिन दिया. दिस इज द 12 मार्च कि पेशेंट फील्स बेटर और
फर्स्ट टाइम वो पुलगांव से बाहर गया, कहीं विजिट दिया, टूर पे गया, वहां एंजॉय किया, है ना. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. बापरे, हा ना. हा. आणि डोक्यात येतच नव्हतं की माझं पोट दुखणार आहे आणि मला आता जा लागणार आहे, काहीच नव्हतं वाटत. The state of patient, state of mind, see the pleaser, see the smiling, है ना. द पेशेंट हैविंग, और उसने पहले तो कहीं जाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि कैसे जाऊंगा बाहर. तो वहां टूर पे गया, कोई एक पिकनिक स्पॉट पे गया, वहां एंजॉय किया, और उसको बिल्कुल कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ उसमें. फक्त तिथं एकच होतं, जेवढा वेळ भेटते तिथं ते आपला एन्जॉय झाला पाहिजे. मस्त बाकायदा त्या Why? जंगलामध्ये टेंट गाडून 8-10 जण होतो. You can see the बापरे, हा ना. facial हा. expression itself. आणि डोक्यात एक्सप्रेस itself कि ये पेशेंट कैसे स्टेट में आ गया करके. Patient visit to tourist spot near the Igatpuri, Nashik, along with his friend, does trekking and lot of sports activity along with the he ate different variety of food. मतलब तब खाने में बहुत डरता था क्योंकि म्यूकोइड स्टूल आता था. अभी सब तरह का खाना खाया उसने, नॉनवेज भी खाया, बट नथिंग गेट्स डिस्टर्ब. Feel much happy that after a long time he can able to enjoy outside and eat whatever he wants to eat. And SL was prescribed after that. Patient comes out of it. एंड व्हाट आई ऑब्जर्व दैट कि अगर ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को पकड़ के मेडिसिन दिया है, और दूसरा उसका जब कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन के लिए सोचा तो इट लुक्स लाइक इट वाज अ फॉस्फोरस. दैट्स व्हाई द कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन भी फिर प्रिस्क्राइब नहीं किया, कंसीडरिंग द फॉस्फोरस एज अ कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन. उसके बाद एपिसोड भी नहीं आया, और फिर दूसरे कंप्लेंट जो हेडेक माइग्रेन था या एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, वो भी रिसर्फेस नहीं हुए, है ना. तो एक ही मेडिसिन से, दैट इज फॉस्फोरस से, बट विथ कंसिडरिंग द एकोनाइट एज अ acute स्टेट में, a state medicine or aconite acute medicine, we can able to resolve the panic attack with the migraine. उसके बाकी फीचर भी देखे तो सिंपैथेटिक डिजायर फॉर कंपनी, एंजाइटी फॉर अदर्स, केयर्स फॉर अदर्स, ये सब भी फॉस्फोरस की तरफ. दैट तो दैट आई कंक्लूड दैट कि फॉस्फोरस एंड इज द स्टेट रेमेडी भी था और कंस्टिट्यूशनल रेमेडी भी था. So like that we can handle such cases with this precise understanding of diagnosis, precise understanding of the state, and try to analyze the follow-up. Right? Is there any question regarding this? So you must able to handle some the rubrics understanding. Even when you understand, when you take the rubric, try to understand that rubric miasmatically. If you take in such a case anxiety future about, it has no value. It has no value. Fear of cancer, might someone take this rubric, fear of cancer, it has no value. The remedy comes will not get able to cure the condition, right? So hope you understood this case very well along with the all others previously जो भी मैंने पढ़ाया है. So we'll see the another new case in the next week. Right. Okay. So thank you very much.